Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. It's been getting quite busy recently.
Uh, King the bow. I can't understand what you will talk. I don't know how to read this bow. I am not Japanese or Chinese. Please write in English. It's been getting quite busy recently. Stand with me! One with nature. Out of my way! Huh? Into the wind. Here you are. The wind knows me. That hurts! Teamwork is dreamwork! Fallen leaves, adorn my night! One with nature. The process of elimination. Abo, I don't understand Japanese. Stand with me! The wind knows me. Lightning terrified! I don't know English. So how we talk, bro? Can you write Japanese words in English? Oh, damn! 4 5-stars in one time. Wait, attack, HP, Dendo damage boost, environment mastery, energy recharge defense. Oh, useless. Attack create HP. This can be useful if we get crit damage too. Attack defense environment mastery useless. But 4 is nice. I got 4 3-star artifacts in one try. Google Translate. Bro, there is so many things which even Google can't translate. Do you want to say something? King Bob has. King Bob, you have something to say to me? I mean, something special, something important, like which you mean? Just like I will translate it after the stream, maybe. Because I am
streaming from my device, from my smartphone, so there's no way I can transfer it. Shit. What that mean? Anyways, can you please like and subscribe if you are enjoying? I'm sick of it. I'm having cold. And still I'm streaming. Let's go back. Okay. How many times you gonna write the same words? Augment EM ER defense. Crit damage HP. ये सही है. ये में किसे EM नहीं. Okay. Let's do this event. Okay. Four more recommended, but I don't have anyone playing right now. Make sure to like and subscribe everyone. Don't blink! Incoming! Don't blink!
किंग बॉब डोंट यूज कांजी। किंग बॉब डोंट यूज। अरे प्रतीक भाई, ये कांजी क्या होता है? हंगो प्रतीक सा कोनचिवा प्रतीक सा। एक जैपनीज स्क्रिप्ट का नेम है। ओह, किंग बॉब जैपनीज स्क्रिप्ट का नाम यूज़ कर रहा है वो। इज ही ट्राइंग टू फोकस? तो वो क्या है प्रतीक भाई, क्या ये वो कर रहा है? मतलब जस्ट भाई मजे में नहीं आएगा। वैसे क्या करना, गोंग करना है क्या मुझे? अबे यार, ये जेंशिन इम्पैक्ट से फीफा कब बन गया मुझे समझ नहीं आया। पता कि जापानीज जेंशिन इम्पैक्ट से फीफा कब बन गया वो? भाई ये कैसे शॉट्स है? जा भाई अंदर जा। एक और नाइस। आज की स्ट्रीम नहीं किया प्रतीक? अब भाई आज की स्ट्रीम नहीं करोगे? अबे चंगा जानता है यार, क्या कर? मेरे पास ये कैरेक्टर है वैसे। ओके, इसको अंदर कर देते। अबे जा भाई अंदर, बेवकूफ आदमी। तो इसको अपने साथ नहीं चलते, छोड़ो। उधर जाओ, तुझे दूसरी जगह गोंग करेंगे। नाइट जाओ ये बाबा। ओके, मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे। स्ट्रीम डींग है, थोड़ी बहुत तो एक ही डींग है। मैंने नहीं किया ये, वो ऐप ने खुद के थ्रू ऐप कर दी है, मैंने नहीं किया इसे। कहाँ है और? तो उधर पूछ। तो भी उधर ही चल। हाँ स्ट्रीम डींग है थोड़ी सी। और प्रभाव जब आया था वंग में, उसके बाद जो स्ट्रीम डींगे तो हो गया थोड़ी बहुत भाई। यार जुकाम ठीक नहीं होगा भाई, क्या दिक्कत आ गई समझ नहीं आ रहा है। बट स्टिंग कहना तो पड़ेगा ही। ओ ये टफ होगा, ये जो अब की बार ये टफ होगा। इसमें करना क्या मुझे पता ही नहीं। ये हमें ये यूज़ करना है सायु को।
ओह ऐसे है क्या? सायू कैरेक्टर अच्छा है यार, मुझे भी चाहिए। ये ऐसे ईएम के मदद से आइस ब्रीजिंग और बाकी चीज़ें कर सकते हैं तो सायू मस्त होगा फिर तो। स्टीम 2-3 सेकंड देंगे बस, 3-4 सेकंड्स। No one's joined me on an adventure in ages. Come on! Let's go! Ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! Or not. Do not poom for wonder to OT Kokomi because 4 stars are useless. कोकमी और वॉन्डर के 4 stars useless है हैप्पी भाई। Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ओके हाय सॉरी वो अभी स्ट्रीम अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई कैन Ow! Where did that come from? डैम भाई, बंदे को अटेंड नहीं करवाते तो सॉरी करते हैं यार, ये सबसे अच्छी बात है। बट सॉरी मत मांगो, जस्ट टेल मी दैट यू आर बिजी। Adventure time. ओके हमारा बैनेट Benny's adventure team, assemble. 77 का हो गया और कुकी भी 80 करनी है। कुकी और बैनेट 80 की हो जाएगी, उसके बाद करते हैं बाकी कैरेक्टर्स। वाओ तो जुकाम से परेशान हो के हम भाई लाइक करो। Benny's adventure team, assemble. यो पाजी, हाय डॉक्टर भाई कैसे हो? यो डॉक्टर भाजी कितना फिर क्या करते सीखे पाजी? इधर
इधर क्वेस्ट है क्या? या इधर है। जुकाम परेशान रखा है भाई। ऐसा नहीं है कि जुकाम, वैसा नहीं है कि सिर्फ ना नाक बंद है और वह सर थोड़ा सा भारी है, बाकी सब कुछ सही है। रेनफोर्समेंट कहाँ है? अच्छा ये क्या रेनफोर्समेंट? Here you are. यार एंगहितम है तो भाई सही है। एंगहितम कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें यूज़ करना आता तो। रेन सीजन जब बारिश होती है ना तब एंगहितम गॉड हो जाता भाई, क्योंकि तुम्हें हाइड्रो अप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। बस कुक एंगहितम यूज़ को, साथ में कुकी यूज़ को, भाई अटैक देखोगे तुम कितना फास्ट हो जाएगा। तो अगर एंगहितम को मैं अभी स्वॉर्ड चेंज कर दूँ ना, कहाँ इसका वेपन स्विच, और ये दे दूँ काजुआ की स्वॉर्ड, तो आप देखना एंगहितम की पावर देखो भाई क्या तबाही हो गया ये। अब इसकी पावर भी दुगनी हो गई है। और कहाँ यहाँ भी बारिश हो रही है ना, मज़ा आ जाएगा। बारिश में तो एंगहितम तबाही मचाता है। आई वांट कुकी, आई वांट कुकी। भाई कुकी किसको नहीं पसंद आई। हैप्पी बो और कुकी तो सबको ही चाहिए। यहाँ बारिश नहीं हुई यार, शिट मैंने नोटिस नहीं किया, यहाँ बारिश नहीं हुई है। ओके बस मुझे नोटिस ना करिए ये सब, और मैं अपने कैरेक्टर चेंज कर दूँ। बैननेट की जगह हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बारबरा। मोना यूज़ कर सकते थे, पर मोना का ना हाइड्रो अपना यार ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। बारबरा का काम कर जाएगा। बारबरा The process of elimination. डैमेज देख रहे हो तुम सब भाई, डैमेज देखो भाई। कहाँ है और एनिमी? कहाँ है? ये गई ओके ओके। छः आ जाएगा डैमेज। बस भाई यही तो चाहिए था हमें। वो बंदा इसको हील कर रहा है, पता है अपने बॉस को। ये देखो Here you are. मैं इसकी एचपी कम करूँगा, वो बढ़ा देगा बारिश से। 4 Gonna be epic. The bond is strong. We don't need an umbrella. Just pick up the pace. मोना की स्किन शो। मोना की स्किन पता है, मेन स्किन उसकी अच्छी है, बस चार्ज अटैक उसके भी जो है ना ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। हाय डेविंग सोंग भाई, कैसे हो?
शो मोना स्किंग में शो करता हूँ भाई, एक सेकंड यहीं पे शो करते हैं। बैनेट की जगह यूज़ करेंगे मोना, इस बार कुकी की जगह मोना यूज़ करेंगे। This is how it must be. ये एनिमी तो दिख जाए कोई, कहाँ है एनिमी? ओह ये क्या है? अच्छा ये है। मोना की स्किन ऐसी होती है, देखो तुम ऐसे होगे ना, छोटा सा वो आ जाता है, एक छोटा सा वो आ जाता है, पर वो ज़्यादा देते उगता नहीं है। अब वो गायब हो जाता है उसके बाद। ओके Shadows of fate. I'll settle this. The process of elimination. Flicker. भाई अटैक अच्छा है, बट मोना का ना चार्ज अटैक, मेन अटैक अच्छा है, चार्ज अटैक थोड़ा सा जो क्विक अटैक जैसे जो होते हैं ना वो थोड़े बेकार है, क्योंकि वो टूकता नहीं है, उसकी ना ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। 2-3 सेकंड में ना अपग्रेड करने पे हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है थोड़ा टाइम उसका, मे भी अपग्रेड करने पे अच्छा हो जाता होगा। एबी स्किन में मोना अच्छी है, बट ऐसे यूज़ करने में मोना थोड़ी सी मुझे मेरी चॉइस है, मुझे थोड़ा सा ना पसंद नहीं आती मोना। वैसे तो सही होती। कूल डाउन टाइम तो है ही नहीं उसमें, कूल डाउन टाइम तो बिंकिंग ही कम है। तुम ये देखो इसका कूल डाउन टाइम जो है ना का है, ये देखो स्किन का कूल डाउन टाइम का है, ये है देखो 12 सेकंड है। डार्कनेस मोना हाउ, मोना भाई अभी ढूंढने में बस तो बहुत पैसे डार्कनेस भाई, तुम्हें पता नहीं थी क्या? I won't hold you back. मोना मेरे पास बहुत पैसे है, 50-50 नहीं आया मैं भाई, 5 बंदे गाइड कर रहे। मोना को तो बहुत टाइम हो गया मेरे पास। ये क्या है? चेस्ट है यहाँ पे, ये अनलॉक कैसे होगी चेस्ट? अच्छा ये यहाँ पे, ये हमें वो चाहिए, वो ही सामने भाई चेस्ट तो चाहिए यार। जियो आई को सो मच, आई विल लूज माय 50-50, हाउ यू आल्सो। मैं 50-50 जीत गया ब्रो, डार्कनेस भाई मैं अपनी 50-50 जीत गया। मैंने अपनी 50-50 पहले इस पे जीता एंगहितम पे, फिर मैं एक ही 50 मैंने पता है अब मेरे पास 5 स्टार है, जिसमें मैं एक 50-50 हारा सिर्फ। I have 5 stars and I lose only 1 50-50। मैं काजुआ के पुंग पे मैं एक 50-50 हारा, जिससे मुझे मोना मिल गई। फिर मैं एंगेतम की 50-50 जीता हूँ, यूंगा की 50-50 जीता हूँ और स्टैंडर्ड बैनर में मुझको वो मिल गई थी, स्टैंडर्ड बैनर में मुझे वो मिल गया था जीन मुझे स्टैंडर्ड बैनर के पुंग से मिल गई थी, मतलब उसमें मेरी 75 या 80 की पीटी थी। आई डोंट नो यू, बाय। अरे बाय बाय डार्कनेस भाई, टेक केयर। अरे यार वो है यहाँ पे, यार इसे देख भी नहीं है, शिट मेरे को कैरेक्टर चेंज करना था। Here you are. 9k डैमेज देगा भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नीचे कूद। देखो ना इसको EM देते ही इसका डैमेज बढ़ गया। As one with wind and cloud, one with nature. Dissipate. I'm lucky bastard। ये तो हूँ भाई, मुझे
मैं सिर्फ एक 50-50 आ रहा हूँ अभी तक भाई। मुझे कहता ना मैं उस पर अपना अंगीता वहाँ 50-50 आ जाऊँगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मैं अपना नेक्स्ट बैन आइकेंगे मतलब क्या कहते हैं गारंटीड पीटी बनाने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड मैं सारे पीटी जीत गया मेरे। भाई किस्मत तो है, किस्मत तो है भाई। डार्कनेस भाई तुम्हारी भी पीटी भाई। देखो तुम में से किसी को करवाना मुझसे पूर्ण करवाएंगे ना, मे भी तुम अपने 50-50 जीत जाओ। मैं 4-5 स्टार में जीन तो जो स्टैंडर्ड बैनर सही है उसको छोड़ के 4-5 स्टार में एक पीटी आ रहा, तो तुम समझ सकते हो। मैं 2 पीटी जीतो वो भी कॉन्स्टेंटली भाई। मक्की तो अब क्या कर सकते हैं। Thank you for तो जेंशिन में ही सही किस्मत तो है। पुंग माई जोंगिन ओके। हैप्पी गेमर भाई जितने ज़्यादा प्रीमोज और विशेष इकट्ठे कर सकते हो करो। जोंगिन में मैं तुम्हारा पुंग कर दूँगा। स्ट्रीम पे ही करेंगे, ऐसे स्ट्रीम करेंगे ना जिसमें जिसको भी पुंग करवाना होगा वो स्ट्रीम पे पुंग देखते हैं शायद। देखो मैं गारंटीड तो नहीं कह सकता बट हो सकता है कि निकल जाए। ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा तुम्हारे विशेष बना चुको बनाओ। वेस्ट मत करना बस। पीटी वेस्ट मत करना भी। मैं कुछ करने जा रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ मैं यहाँ जा रहा था। वो मैं तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया बट मैंने मेरे 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स दिए एक बार में। ओनली 30 पुंग्स 30 मोर पुंग्स हो जाएगा। मुझे 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। अब ये रेयर है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे 4 आर्टिफैक्ट्स दिए एक बार में। ये देखो मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड पे शो करता हूँ। अभी मैंने आज ही स्ट्रीम में किया था वो। जेंशिन है ना, जेंशिन। ये देखो एक बार में 4 आर्टिफैक्ट्स वो भी 5 स्टार। ये देखो मैं 4 आर्टिफैक्ट्स दिया 5 स्टार भाई। डैम भाई मुझे लगता था ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकती है ये। स्टार 4-5 स्टार भाई। पता नहीं कैसे 4-5 स्टार दे देते हैं इन्होंने। आज दया आ गई क्या इनको? दया बैन आ गई क्या उसमें की? क्या नाम है इसका? तारक मेहता का। भाई आज की दिन किस्मत इतनी अच्छी भाई। तो कहीं से मुझे 5 to 10 की कोई मौज दे दो यार। गेम में कोई गिंच के दो, गेम में कोई गिंच हो जाए वो मुझे 5-10 की कोई मौज दे दे। गेम ऑटोमेटिकली क्या ये भाई जो 10 के क्यों है? जब यही आए तो भाई 100 के दे दे। 100 के दे दे। मैं कम से कम अपना वॉन्डर तो मैं अभी सबसे पहले तो कैंगी निकाल देता। कैंगी वॉन्डर सब निकालता। कोको में भी जोंगिन गाइडेंस शो करनी। मैं बैनर के आर्टिफैक्ट्स फार्म करूँगा यार। बैनर के आर्टिफैक्ट्स देता नहीं अच्छे अच्छे। ओनली 30 मोर बुक्स। तुम्हें 30 मोर बुक्स 90 पीटी होने में है कि तुम कोई टारगेट तुमने सेट किया हुआ है उसमें पीटी तुम उसके लिए तुम विशेष सेव करो। 30 के बाद तुम्हारा वो टारगेट हिट हो जाएगा। हाँ देखते हैं। जोंगिन तो चाहिए भाई मुझे चाहे वॉन्डर क्यों नहीं स्किप। हाय मिकासा, हाउ आर यू? बट यू हैव टू लॉग इन टू माई गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट नहीं, तुम वो जैसे
उसमें होता है ना क्लैश ऑफ क्लैंस में OTP वाला सिस्टम, वो करना। गूगल अकाउंट मत देना यार, वो तुम्हारी प्राइवेसी ज़्यादा डीप हो जाती है, वो सब मत दिया करो किसी को। कुछ ऐसा देखो जिसमें तुम्हें कम से कम प्राइवेसी वाली चीज़ें तुम्हें शेयर करनी पड़े। वो मैं अटैक रीसेट हो गया, देखा तुमने? मैंने काजो की एबिलिटी यूज़ किया, वो फिर भी रीसेट हो गया, वापस आ गई मेरी एबिलिटी। हाँ ये सांग जब तक ये रहेगा ना। ओके Adorn my night. The wind knows me. Our bond is strong. इसमें ना मेरे को बहुत गंदा लगता है ये फायर वाला, सबसे गंदा मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैं हाइड होने के नहीं आता हूँ, ये बचता रहता है मेरे से। बट आप कैसे बचोगे भैया? भैया तुम कैसे बचोगे? ये स्पायर अभी है क्या? नहीं मैं वो कर रहा हूँ। स्पायर अभी नहीं है, ये वो है डोमेन्स। Clouds high, the birds call into the wind. डोमेन ही है। Wind strider. मैं आर्टिफैक्ट्स फार्म कर रहा हूँ इसके लिए, बैनेट के लिए। और आर्टिफैक्ट्स अच्छे देते नहीं है यार, ये भी तो दिक्कत है। ओ एनर्जी चार्ज, एगमेंट मास्टर, HP, डिफेंस दे रखा है, डिफेंस दे रखा है। देखो तुम कितने गंदा दे रही है। बाय, मैं मीट यू आफ्टर 20 मिनट्स। बाय बाय हैप्पी दी जियो आइकॉन भाई, बाय बाय जियो आइकॉन, टेक केयर। स्टार्टिंग में किसको मारा है? स्टार्टिंग में इसको मार देते हैं। The process of elimination. I'll settle this. As one with wind and cloud. बस बाकी को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, तू बस मर जा किस तरीके से। The wind knows me. Teamwork is dreamwork. One with nature. Clouds high, the birds call. Wind strider. Our bond is strong. Flicker. Out of my way! Everybody stand back! Stand with me! ये जो है हमारे जियो आइकॉन भाई, वही तो है। ये अलग बात है उनके आईडी में अभी तक है नहीं वो कैरेक्टर जिसका नाम वो यूज़ कर रहे हैं, बट आ जाएगा, आने आए उसका भी बैनर उसके पास। मैं समझ ये आर्टिफैक्ट्स क्यों नहीं अच्छे रहते हैं। मैंने दिन में भी फार्म किया, अभी भी फार्म करूँ, मैं आर्टिफैक्ट्स फार्म करूँ पर ये दे नहीं है मुझे अच्छे आर्टिफैक्ट।
बड़ी जल्दी आपका यह पुश हुआ है 2 महीने के हिसाब से, ये तो है। डिफेंस अटैक मूवमेंट मास्टरी एनर्जी रिचार्ज, मैं इसको बिल्ड करने वाला था बट ये बेकार हो गया। एनर्जी रिचार्ज, डिफेंस अटैक, एनर्जी क्रिएट डैमेज, ये भी बेस्ट है। कुकी पे दे सकते हैं क्या? एनर्जी रिचार्ज तो चाहिए कुकी को। डिफेंस, EM भी चाहिए कुकी को। वेस्ट हो गया। बाइक को गया 5 बंदे। भाई देंगे का मैं थैंक यू भाई। बहुत लोगों को याद दिलाना पड़ता है। सुशील शर्मा भाई थैंक यू सो मच। तुम जैसे मोयंग पर्सन तो चाहिए जो बिना बोलने ही सब कुछ कर देते हैं। तुम सबकी वजह से तो मैं जुकाम में भी आया पड़ा हूँ स्क्रीन पे। प्रीमोज का क्या सिस्टम हो गया तुम्हारा, तुम सबका? कितने प्रीमोज पहुँच गए तुम सबके पास? और ये मुझको एक चैट 3 बार क्यों दिखा रहा है इसके अंदर? वो सारी चैट 3 बार दिखा रहा है भाई मुझे ये। भाई यार क्या दिक्कत आ गई भाई? टर्निप अजीब भाई कितने करता है, मैं क्या करूँ टर्निप का? भाई देखो यूट्यूब पे कुछ और दिखा रहा है, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। क्या करना है? ऐसे यहाँ जाना है। ये हर दिन का इसका यही काम है यार, मुझे अजीब जगहों से काम करवाता रहता है। सारे क्वेस्ट इसी के पास से स्टार्ट होते हैं क्या यहाँ के? भाई एक बार मैं इनकम सोर्स तैयार हो जाए फिर मैं आराम से जेंशिन स्टार्ट करूँगा। सुशील शर्मा भाई ये भी तुम प्लानिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है और तुम प्लानिंग के हिसाब से ही करो जो भी तुम्हें कुछ करना है। इससे मैं बहुत बार जीत चुका हूँ यार। अननोन वॉरियर नाम होता है इसका। क्या करना क्या है? बस मुझे यहाँ पे आना है। Time to go. हो? अच्छा 54 मीटर ओवर नीचे जाना है। इस साइड से जाना पड़ेगा मुझे। ये भाई हम दूसरी साइड से जा रहे हैं। Follow the wind. बिकॉज मैं बहुत अपने मज़े मार दिए फिर उसे भाई। अगर सही है भाई, तुमको ना प्लानिंग करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है पर जो तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग है वही तुम्हारे साथ रहती है। तो इस वजह से प्लानिंग के हिसाब से करो जो भी करना है तुम्हें। इन्जॉयमेंट के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, वो तो कभी भी कर सकते हो तुम। एक यहाँ कहीं पे दिखा है मुझे इलेक्ट्रो क्यों, कहाँ है? अच्छा वो होगा, तुम्हें मारना पड़ेगा भाई। Deflect. सही है भाई, फिर कहो भाई।
अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई करो। Let's light it up. तो यार जिंदा है अभी, ये तो जिंदा है ब्रो। ओके Don't let any of it roll away now. कहाँ जाना है हमें? यही तो था तो क्यों ना। तो महंगे घंटों क्यों ना हमें? आपने क्वेस्ट पे चलते वापस। यहाँ आना है क्या हमें? मैंने एकदम इसके ट्रेलर में ट्राई किया था, बहुत सही लगा मुझे। काजुआ से ज़्यादा सही लगा। मैं बताऊँ भाई, देखो काजुआ से ज़्यादा सही लगता तो है, बट काजुआ परफेक्ट है सिचुएशन के हिसाब से। काजुआ तुम्हारे हर सिचुएशन में काम आ जाता है। एनिथम तुम्हारी फाइट में एडवांटेज तुम्हें दे देता है, काजुआ तुम्हें एक्सप्लोरेशन में भी। अब जैसे कि मेरा वो था इलेक्ट्रो क्यूमर, वो छूट रहा था, मैंने काजुआ का स्किन यूज़ किया, वो ऊपर पुश हो गया, वो मेरे को मिल गया। वरना मुझे पूरा सूर से चढ़ना पड़ता, फिर कूदना पड़ता, बहुत वो होता है। पर काजुआ का ये भी एडवांटेज है। दूसरा काजुआ एक एनिमो कैरेक्टर है, तो उसका भी एडवांटेज है। काजुआ बेटर है हर पर्पज़ से एंगहितम से। और एंगहितम ना तुम स्विच नहीं कर सकते फाइट के बीच में, काजुआ तुम स्विच कर सकते हो। अगर मैंने एंगहितम का अटैक यूज़ करके स्विच करता हूँ ना, तो उसका अटैक रीसेट हो जाता है। तो मुझे 12-14 मिनट तक वेट करना पड़ता है, सेकंड तक, कि वो वापस आए। है ना? क्या है ये भाई? अजीब अजीब काम को होता है मुझसे। यहाँ पे कुछ है क्या? इन चीज़ों के पास आना है क्या मुझे? ठीक तो भाई तू पोस्ट बाइट बाद में दियो, मुझे सामान उठा ले। और भी क्या? एक और क्या? अबे गुद्दी चटका दूंगा भाई तुम सबकी। रुक जाओ 2 मिनट, मुझे सामान ढूंढो, मुझे सामान ढूंढने का। ओके Time to go. एक और है, एक यहाँ है। Time to go. मुझे वेट तो नहीं करना पड़ेगा ना उसका? हाँ यार मारना ही पड़ेगा भाई। तुम हट गए चल अब कर। ये तो है, डैमेज एम्पलीफाई भी करता है। बाकी उसका जो स्वर्ग है, उसके जो मेन अटैक है, चार्ज अटैक है, दोनों अच्छे हैं। मेन अटैक में ये देखो ये फ़ायदा है कि तुम जंप करो, सबको इकट्ठा करो तो मार सकते हो, बहुत इजी पड़ता है तुम्हें। एंगहितम के लिए तुम्हें इंगक्टो या पायरो यूज़ करना पड़ता है। मैं इसके में इंगक्टो या पायरो की जगह कोई भी हो, तुम्हारे नियर बाई कुछ भी हो, तुम्हारा एडवांटेज होता है। एंगहितम को एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है, इसको किसी भी टीम में घुसा दो, बस जियो को छोड़ के। तो ये सारे एडवांटेज तो है भाई। बाकी मैं स्टार्टिंग से एनिमो कैरेक्टर फेवरेट है, मुझे पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में मैं ट्रैवलर को, मेरा ट्रैवलर 90 का है। बहुत कम ही लोग ट्रैवलर को बिल्ड करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा ट्रैवलर 90 का है, मैंने उसे इतना तगड़ा बिल्ड किया हुआ है। मेरे टॉप 3 कैरेक्टर्स में ट्रैवलर आता ही आता है, वो इतना तगड़ा बिल्ड है। और इसका एडवांटेज भी है मुझे। अरे यार मैंने गंगसे से स्किन यूज़ करनी है। मुझे कभी जैसे कि चाहिए होता है, ऐसे कोई सिचुएशन जब मुझे डैंडोज कैरेक्टर चाहिए होता है एक और, तो मैं ट्रैवलर को यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। और जियो में तो वो यूज़ आ ही जाता है। ट्रैवलर ये होने का फायदा क्या है?
मुझे बस सिलेक्टो करना उतना समझ नहीं आया, बाकी सारे ट्रैवल अच्छे नहीं हैं। अरे यार अरे तुझे मान, अच्छा इनको मान ही है। Into the wind. Scatter. Flicker. Well now. Lightning terrified! Let's end this quickly. Let's light it up! One with nature. रेनफोर्समेंट मुझे पता था, मैंने चार्ज अटैक अपना सेव किया था। हेलो, Everybody stand back! इज दैट यू? The birds call. अरे यार कहाँ गई ये चीज़ ना मुझे बहुत गंदी दिखती है इनकी, जो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। Deflect. Into the wind. Our bond is strong! Here you are. Out of my sight! ये भी मैं गई, मजा नहीं है। ओ भाई मैं गेम फ्री दूँ, पता है इतनी गंदी यहाँ पे। अंदर मत आइयो भाई तू। Stand with me! RCB and my कैसे? नेविगेट, टैप टू नेविगेट। मुझे इसकी HP इंक्रीज करनी है। Our bond is strong! एक चाइल्ड को नहीं मार पाते हो। अरे चाइल्ड मैं अपने वंग में मार के दिखाता हूँ यार, तुम रुको अभी 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपने वंग में मार के दिखाता हूँ। तुम्हारे वंग में भाई मेरे पास मेरे सारे कैरेक्टर ही नहीं है, मैं भी चाइल्ड को अपने वंग में मार के दिखाता हूँ। देखो कितना ईजिली मरते हैं मेरे वंग में चाइल्ड। तुमसे हाई एवं वंग है तब भी देखने कैसे मारूंगा मैं। अभी रुको इस क्वेस्ट के बाद मार के दिखाता हूँ। नेविगेट क्या करना है मुझे यहाँ पे? स्टार्ट। One with nature. Teamwork is dreamwork! Fallen leaves adorn my night. Stand I with do. me! The process of elimination. Here you are. Knowing that the insult shall be punished. Purging transgressions! Deflect. Everybody stand back! I'll flow through me! Clouds high. The birds come. मर गया नहीं।
मशीन यूज़ किया हमने फाइनली। इस मशीन से वो होता है यार, तुम्हें जुकाम ठीक नहीं हुआ। कंप्लीट हो गया क्या हमारा? ओ इंगेक्टो वो हट गया, इंगेक्टो बैरियर जैसा कुछ था। क्या है? अच्छा ऊपर है यहाँ पे, कहीं पे इंगेक्टो क्यों दिखा रहा है बट कहाँ है वो नहीं दिखा रहा। अच्छा इसके ऊपर है वहाँ पे। जो इस पे बाद में जाएंगे, मैं तुम्हें चैंग तो मार के दिखाता हूँ यार। न्यू हार भाई तुम्हारे हिसाब से चैंग को कितनी क्या कौन सा कैरेक्टर पता? मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें ना कचिंग की जगह तुमने 2 पाइवो कैरेक्टर यूज़ किए होते ना, हम पक्का जीत जाते टाइम से। तुमने देखा था स्टार्टिंग में हम बहुत उसको अच्छा मारे थे, एंड में हम मार गए थे क्योंकि तुमने कचिंग यूज़ किया हुआ था। मैंने तुम्हें बताया भी था। मुझे उनका तुम स्ट्रीम देख रहे हो बट ऐसा कुछ था नहीं, तुम स्ट्रीम देख नहीं थे। हमें पता है चैंग को मारने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ों की जरूरत है, एक इंगेक्टो, दूसरा पाइवो वेपन स्विच। हमें सिर्फ एक इंगेक्टो, 2 और एक पाइवो कैरेक्टर चाहिए। और कचिंग की जगह का वो होता है ना, तुम्हारे पास 2 नीचे है, नीचे ही था। एक सेकेंड, अगर नहीं मैं अपनी HP बढ़ाने आया हूँ, HP इंक्रीज करने आया। फूड क्यों यूज़ करें? अपने बगल में चाय हर हफ्ते मारता हूँ भाई, मैं हर हफ्ते अपने बगल में चाय मारता हूँ। ये देखो मैं इस वीक भी मार चुका हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा। ये चाहिए था मैं टीम, मैं कुकिंग क्या आया था, मैं काजुअंग क्या था, तुम बैनेट गाए थे बट तुम कचिंग नहीं क्या, वो शेफ नहीं क्या, मुझे कहा तुम नहीं क्या होगी। This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Wide open! Stay focused! I'm going in! Cowering already? Stand with me! Time to go. You've made some progress. Dissipate! Time to go. One with nature. Boba, get them! Not bad, not bad. Run all you like. Our bond is strong! So quick to believe. As one with wind and cloud, a voyager. Time to go. Never again. No one! Into the wind. How unbecoming. Terrified! One with nature. You've made some progress. Not bad. You've got a trick or two. Time to go. You're All you do toast! is run. Stand with me! Into the wind. No use hiding back there. One with nature. Time to go. Let's light it up! Nice and All spicy! you do is run. Our bond is strong!
Everybody stand back! Wind Strider. A 4-star कैरेक्टर आज़ाद मार के दिखाओ। हरा ये कौन सा है भाई? वो नाम से आती है तो मुझे वैसे बताओ, कैरेक्टर के नेम से बताओ कि कौन सा कैरेक्टर है वो, जो मतलब हमारे कैरेक्टर के नेम के हिसाब से बताओ। Your strength is praiseworthy. I too shall use mine. Dissipate! Out of the front! That really hurt! Fallen leaves, adorn my night into the wind. Huh? Time to go. Booba, get them! I'm going in! Out of my way! Oh, stand with me! Out of the frying pan! One with nature. Ow! That's gonna hurt in the morning. Off we go! Eat this! Don't worry. Our bond is strong! Booba, get them! Wind Strider. Clouds high. The birds call. Teamwork is dreamwork! Some you win, and some you lose. डू यू हैव ट्विटर? भाई मैंने कहीं परसों ही ट्विटर बनाया था। अरे शिट, मैं ओवरिंग शो नहीं कर रहा ना इस टाइम। ये कैसा यार, कल की स्ट्रीम में मैंने ओवरिंग सेट किया था, ये हट कैसे गया? हाँ भाई पता नहीं क्या क्या होगा, ये अपने आप ही स्ट्रीम से ओवरिंग हट जाएगा बीच बीच में। ट्विटर है मेरा, मुझे याद नहीं आया मैंने क्या बनाया था। हाँ रोबोट इंडियन, ये नाम है ट्विटर। भाई जिनके पास ट्विटर है यार दिखाओ भाई कैसे। मैं ट्विटर यूज़ करने नहीं आता, मैं फर्स्ट टाइम ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। कैसे यूज़ करते हो ट्विटर, और ये हुआ कैसे नहीं मेरे को समझ नहीं आया। मैं ओवरिंग कैसे सेट किया? ओवरिंग तो मैंने सेट किया हुआ था तो। होमवर्क हो गया ट्विटर पे भी। मैंने वो नहीं किया अपना एंगेतम गाना था यहाँ पे। एक बार ना जब वो चेंज हो जाता है तुम्हारा चाइंग द वाटर से, बाकी दोनों फॉर्म में वो इंगेक्टो यूज़ करता है। तो इंगेक्टो के अगेंस्ट बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास एक ही है, पायरो। तो तुम पायरो यूज़ करोगे ना इंगेक्टो के अगेंस्ट, तो तुम आराम से चाइंग को बीट कर सकते हो। इस वजह से मैंने कहा था कि चाइंग को बीट करने की टचिंग की जगह तुमने अगर वो यूज़ किया होता शेफ और बैनेट, तो हम जीत जाते। बट नो वरी, हम आज भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बट यही है कि तुम्हें 2 पायरो यूज़ करने पड़ेंगे। Time to go. मैंने सुबह मार दिया। मैं तो चैंग को मार चुका, मेरा भी मार चुका था मैं, बस वही था यूज़ नहीं किया था मैंने सर तक। यहाँ जाना है। AR हो गया, सही है।
Stand with me! Wind Strider. अरे नहीं, यहाँ पे इंगक्टो क्यों आ गए कहीं पे? मैप में देखोगे ना तो मैं इंगक्टो क्यों आ देखना, यहाँ पे वही शो सर्च करो कि कहाँ पे है वो। शायद कहीं नीचे है। ये रहा। हो गया। देखो इंगक्टो क्यों है सर्च करता हूँ तो मैं ना थोड़ी सी आवाज़ सी आती है क्यों है जब पास होता है, वो घर के नीचे होता है। ठीक है भाई, आईसीडियन भाई। मुझे सारे स्टैचू उसको ना 10-10 करना है। मेरा जियो स्टैचू 9 का है, वो बाकी दोनों 8-8 के हैं। तो मेरे को शायद 6 है, बाकी इंगक्टो 8 का है। वो you tweeted is your tweet is not on it. अरे एनीमो हो गया मैक्स, हो गया ही मैक्स। एनीमो तो मैक्स है ही, मैं उसका जियो की बात करूँ। एनीमो तो हमेशा ही मैक्स है, उससे तो बहुत पहले मैंने मैक्स किया है। सबसे इजी एनीमो है, फिर जियो है, फिर इंगक्टो है, फिर डेंडो है। एनीमो में 75 या 79 चाहिए होते, जियो में 110 120, इंगक्टो में 150 160 और डेंडो में 230 के करीब। जियो का लेवल सही है। माई जियो 1, इंगक्टो 1, डेंडो 1, एनीमो 6। भाई हैप्पी वो हो जाएगा तुम्हारा। तुम अभी तुम्हारा AR भी तो बना है हैप्पी। तुम्हारा और AR कितना है भाई? 26 या 28 था मुझे जितना याद है। हैप्पी भाई का 26 या 28 है। ऑन यू ट्वीट हैप्पी भाई, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। मेरा ट्विटर अकाउंट सर्च करने पे नहीं आ रहा है कि उसमें ट्वीट जो है वो सही नहीं है। कुछ एक मुझे रीज़न बताओ कि क्या सही नहीं है, क्या दिक्कत आ गई है। ये क्या है? मुझे क्या दिया? रेसिपी दी है किसी चीज़ की? ये क्या है मेरे पास? वो इधर भी एक है तो इसके नीचे क्या कहीं पे? जियो अकाउंट वेट। एक सेकेंड। हैप्पी तुम्हारा AI कितना? नहीं, एक सेकेंड। वी कैन नोट मैसेज यू। वी कैन नोट मैसेज यू। मुझे करना पड़ेगा उसे, क्या देखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं इतना। मैं यूट्यूब पे देख के उसे सेट करूँगा कि कैसे उसमें होता है। अच्छा, तुम मेरा ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर पा रही ये? ओके, समझ गया मैं। उसे कहूँगा मैं, कुछ होगा उसे फिक्स करना पड़ेगा। यूट्यूब पे देख के वीडियो सेट उसको फिक्स करेंगे। दोनों तो आ गई। क्या ये इंगक्टो कहाँ है? ये इंगक्टो क्यों है?
Into the wind. Let's get down to business. As one with wind and cloud. The wind knows me. आज संडे है, काजू का टैलेंट करो। ओह शिट भाई, मेरे पास गैजेंस नहीं है, मेरे गैजेंस वेस्ट कर दिए। करना पड़ेगा मुझे। Time to go. Time to go. कैन यू फार्म इन माई अकाउंट? तुम्हारे अकाउंट में मैं फार्म कैसे कर पाऊँगा यार? मैं क्वेस्ट तो इन बाकी चीज़ों में मदद कर सकता हूँ, फार्मिंग नहीं कर सकता यार। फार्मिंग में टाइम देना पड़ता है, और तुम्हें पता है मैं अपनी स्ट्रीम के बाद मैं वैसे ही मुझे तीन चार वैसे ही हो जाता है, 3-4 घंटे। उसके बाद मैं स्ट्रीम कहाँ से कर पाऊँगा? मैं मदद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तुम्हारे वंड में या फिर नए वंड में आके तुम्हें वो ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हें कोई चीज़ ये बता दो, मैं तुम्हें मार्क करवा सकता हूँ मैप में कि यहाँ वो सामान है। बट अगर तुम ये मुझे ढूंढना पड़ेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई तुम्हें पता है स्ट्रीम के बाद मैं 4-5 घंटे स्ट्रीम के बाद मैं क्या से कर पाऊँगा। और दिन में मुझे जाना पड़ता है, मैं आता ही 5:30 बजे के बाद हूँ। 5:30 बजे के बाद मैं आता हूँ, 5:30 आता हूँ मैं, 6-6:30 तक मैं रेस्ट करके 7 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट होता है। आई बाइक ब्रो। Into the wind. हैप्पी वो बताओ, कुछ हो क्या हो? क्या बताओ, क्या कह रहे हो फिर? तू जा बे, तू जा भी जाना है। ये घूमे कैसे? मेरे को अभी भी समझ नहीं आई। चेस्ट नीचे एक नट्टो क्यों आ रहा है?
Time to कोई go. तो रास्ता होगा इसे खोलने का। उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिखागा चाबी या किसी और चीज़ का कि हम उसको जाके कर सके। यहाँ से भी कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। चलो छोड़ो से बाद में करेंगे। On live, you can do my abyss, you bring back content and I am no without it. abyss करना है तुम्हारा। भाई वही दिक्कत है ना, तुम्हारा जीमिंग से लॉगिन किया हुआ तुमने। तुम्हें कुछ सेटअप करो कि जीमिंग ना देना पड़े तुम्हें, ऐसा कुछ सेट करो। मुझे ये पता नहीं है बट एक कोई मेथड तो होता है इसका जिसमें विदाउट जीमिंग तुम दे सकते हो अपनी आईडी। देखो नेट पे सर्च करो, नेट के हो यूट्यूब पे सर्च करो, तुम्हें एक मेथड मिलता है जिससे विदाउट बिना जीमिंग दिए तुम अपनी आईडी किसी को दे सकते हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो मैं करने के लिए दिया हूँ, क्योंकि भाई जीमिंग है ना रिस्की चीज़ है और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा जीमिंग बहुत प्राइवेसी होती है जीमिंग में, और मैं वो सारी प्राइवेसी को रिस्की सिचुएशन में नहीं करना चाहता। चाहे तुम मुझ पर यकीन हो बट हो सकता है कि मेरे को तुम जीमिंग दो उस टाइम किसी बाई चांस तुमसे या मुझसे ही लीक हो जाए तो आगे जाके दिक्कत आएगी। तुम सोचोगे मैंने किया है, मैं सोचूंगा तुम्हारे से लीक हुआ है, तो ऐसा कुछ कहो जिससे जीमिंग ना देनी पड़े। इसमें एक OTP सिस्टम होता है, मुझे पता नहीं है उसका नाम, वो कहो, वो हो जाएगा तो हम कर सकते। Benny's adventure team, assemble! Time to go. Paimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. We can still add it to the list. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Hello there. Oh, it's been quite a while. Huh. So you two are still hanging out together. Dia... I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. That account is my game account. I have personal account another. Okay, तब हम try कर सकते हैं. Don't worry. But wait, करेंगे हम. didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. मैं Instagram Sorry, या my फिर lady, Twitter पे but भेजना no मैं can try do. करूँगा. There's still a few things I need मैं मुझे to अपने take care characters of की back list at दे the दो, मैं brigade. उसके हिसाब से देखता हूँ कि कौन सा Besides, character the best है. desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like... I feel like something is off about you lately.
Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh, looks like Junior's was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Okay, let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, My game Garena account name is and complex organizations structure. Many mercs are no different than me. Just going around, my brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They don't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. Just wish I knew what's driven them to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. It's all right, my lady.
That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props, like with helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Yeah, I've always found him pretty childish. That was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess, too. Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. हेलो प्रभाव, कैसा है भाई? कहाँ था भाई तू? आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं है क्या भाई? Hi GS Gaming भाई, welcome back. Hey Dia, you're back. Are these two friends of yours? Mike Mao, John Wicker,
देख रहा था, आज नहीं आ पाऊंगा। अरे डोंट वरी, वैसे भी आज अब मेरा बीच में का कोई प्लान है नहीं चला। There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Akhmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. होती है ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट। Even the most ferocious Bye bye, beasts take still care. protect their own. बाय बाय प्रभु। It sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible. थैंक यू जीस भाई। And it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it would probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. ये मैं चेक 3 बार क्यों शो हो गया इसमें? Power struggle? You heard me right. ऐप में The vast थोड़ा सा majority ग्लिचेस of होने victims are में स्ट्रीमिंग mercenaries ऐप में। from the other brigades of Deshrek's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Akhmar became more and more active, Deshrek's relics as a whole became a lot weaker. Sounds mighty strange to me too. Haroon, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Akhmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Tia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Khan al-Akhmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Reebok. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? Oh, you're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh, in that case, then you better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Man. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry, and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious?
Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? Alright. We can You are about it streaming with later. your phone. Now's not Yes, the भाई time. गणेश मैं इस phone से Hey, stream don't करता you हूँ. try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Khan al-Ahmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Travelers and visitors. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. He knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. Look alive! You're the Flame Main. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Khan al-Ahmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds! I'll save you the trouble.
Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. But why would he be so extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should... Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. We found a piece of paper with a bunch of... Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food. This caravan is just one link in their logistics chain. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Perhaps, but they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Shahzaman Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shahzaman Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? I'm sorry, you're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Lakmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shahzaman as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Ribat or Port Ormos. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the Master would stoop so low to make Mora. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. If you ask me, I'm not worried. Let's go find my lady. If we're lucky, we can not— Dia. I've considered that possible. She showed genuine— That's not how I deal with— You're right. Paimon wants to— Yeah.
The wind knows me. One with nature. Into the wind. Brings a smile to my face. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his... He offered me a pile of Mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dakan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean to go all along?
wrong was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. However, the Homiyani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homiyani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's alright, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. Dunyarzad. वो मर जाते हैं, but end में जिंदा भी हो जाते हैं. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. वापस जिंदा हो जाते हैं क्योंकि Too early to give up hope. मोड़ कुछ नांगे उसको जिंदा कर देती है. Right, yeah, trust. You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? आइकन क्वेस्ट के 2 पार्ट है भाई. दूसरे पार्ट में ये जिंदा हो जाती है, देखो. या फिर आइकन क्वेस्ट के पार्ट में ये शायद जिंदा हो जाती है. कुछ नांगे इसको बचा लेती है. वही तो कहो, मेरा भी आइकन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है भाई. डेंडो का जो हमारी वो है नाइडा, वो इसको बचा लेती है. तुम ध्यान से वो देखो. होता ये है कि समसारा में हम जब फंसे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मर चुकी है और वो समसारा में मर ही जाती है. बट एट द एंड जब हम समसारा एंड करते हैं तो जो कुशनांगी होती है, जो आइकन होती है, वो इसके बाकी, क्योंकि संसार में कई सारी मेमोरीज होती है, तो बाकी किसी एक मेमोरी में से जूनियर वर्ड को वापस Yes, my daughter has mentioned them from time to time. क्योंकि हर दिन के संसार जब एंड होता है तो जूनियर वर्ड की तबीयत खराब हो जाती है, तो किसी पुराने पिछले संसार में से वापस नहीं आती है. What is the important matter you wish to discuss with me today? फाउंटेन का तो मैं भी फाउंटेन का ही वेट कर रहा हूं. Transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, dear, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father, Kusela, and I both believe that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a... His heartfelt efforts?
I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. But you know, I something came like here today to support you as the head of the Homiyani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time, and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always sent me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Dekan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, but by then,
He was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about... If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. No. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Ahmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes.
Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. भाई लाइक कर दो. This place should do. Alright, back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. पेंसिल We भाई मैं know what कहने को kind तो of दे रहा हूँ बट punishment कुछ you'll पूछो face तो once we सही. report you to the Corps, I assume. Anyways, Wait. There's no need to told you jump the guys. gun. Let's talk this out. एक्चुअली मुझे ना थोड़ी What सी do you जुकाम tell होता है. जुकाम और कोल्ड है, जुकाम और फीवर है, इसलिए इसमें थोड़ा कम बात करो क्योंकि मेरे नेक में थोड़ा सा I was a little tight on नेक money है. at the time. मेरे Kusela थ्रोट took के good नीचे care थोड़ा of me सा in the वैसा past. I खराश waited in my जैसा. mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make some quick mora. Let me tell you how it is. We're investigating Khan al-Akmar, and we're gonna put an end to their If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. And just give me a number. I'm sure we can... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. Hi everyone, hi And चंदन भाई you कैसे can हो? forget about any nice words from us. चंदन Hey, come on. अरे तुम्हें कुछ Why are you just पूछना था being चंदन भाई. unreasonable? तुम कहते थे ना Really? डिस्कॉर्ड पे कुछ And बताओ. how do I बताओ know क्या you're not बताना leading तुम्हें? us straight into a trap? Don't forget, you're the one with no bargaining chips. All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for you all. Now that's more like it. Let's move. And as for कहते तुम्हें you, कुछ बताना है? try to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have बताया them है? drag you back to the city. डिस्कॉर्ड पे तो मैंने देखा था, नहीं देखा था मैंने तुम्हें कुछ भी. ओके, बताया क्या तुम्हें? अरे कुछ नहीं ब्रो, बस तुम्हारे कैरेक्टर ठीक करने से. अच्छा. अरे हाँ, ये एक्चुअली मैंने ना आज वो किया, एक डोमेन किया, उसके अंदर मुझे एक बार में 4-5 स्टार दिया है. अगर ये हर बार इतने दिन देता है तो मज़ा नहीं आ जाएगा. एक बार में 4-5 स्टार कंडक्ट के साथ ओबियसली, बट वो तब भी भाई बहुत अच्छी है. Don't worry, I'm not going anywhere. तुम्हें एक बार में हाईएस्ट कितने मिले? एक डोमेन से तुम्हें हाईएस्ट कितने वो मिले हैं? आर्टिफैक्ट्स. इसको नक कहते हैं. अरे भाई मेरा नक, हाँ नक तो है थोड़ा बहुत जेंशन में कभी कभी, पर एक भी आर्टिफैक्ट अच्छा नहीं है भाई. ये तो है, नक तो कहते हैं बट आर्टिफैक्ट एक भी अच्छा नहीं है. वर्थ इट नहीं है कोई भी. मैं उसकी नहीं कर रहा था, बैनेट किंग है, पर देखा जाए तो एक भी वैसा नहीं है कि जो मैं बैनेट पे लगा दो उसका यूज़ करूँ. मेरे को एनर्जी रिचार्ज तो दे रहा है बट बाकी That चीज़ें should be नहीं their दे. camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Tia, why are you here? तुम्हें गेम कितने टच की है? ऐसा क्यों? Here you are. Haven't you all done enough? बोला क्या? Oh, so are you also here to stop us? Stay out of this. It's got nothing to do with you.
अरे मेरे पास आर्टिफैक्ट्स नहीं है भाई, वो वेपन नहीं है चंदन भाई। पता है मेरे पास आर्टिफैक्ट्स और वेपन की दिक्कत आ गई है। मैंने वेपन बैनर पे भी एक बार पूरी किया, बट मैंने अभी तक सिर्फ एक ही पूरी किया वेपन बैनर पे, एक ही We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down. मैंने सारे के सारे वो कर दिए जिसमें से एंगमेंट वास्टी बनाने का वेपन मिल सकता है, तो वो मेरे को मटेरियल नहीं है वेपन का। A long time ago. AR-43 resist use. Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best. AR-43 पे रेजिस्टेंस मत यूज करो यार, 45 की बात करना। कुछ फायदा नहीं डोमेन्स का। मैं मिस्टेक कर चुका, तुम मत करो सेम मिस्टेक। A few years ago, तुम्हारे Kusela कैरेक्टर पे broke up गलत वेपन Takana लगाया हुआ है। and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. एक पे मैंने मतलब चंदन एक पे मैंने यूज किया भाई, मतलब EM किंग चाहिए था मुझे, बाकी मैक्सिमम पे तो सही है। Every last person in Deshret's relics must pay in blood for what they did. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the relics मेरे पास maintained EM का order सिर्फ एक ही वेपन है, internally? मैं Overwhelming वही उसी में strength दिक्कत and आ रही unquestionable है। मैं authority. न्यू वेपन क्राफ्ट Those नहीं कर were पा part रहा, of it, yes. क्योंकि मेरे पास वो जो स्वॉर्ड की होती है वो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है। मैंने चाइनीज को मार के देख लिया, उसमें भी नहीं मिला, मैंने वुंग्स को मारा, उसमें भी नहीं दिया, और बाकी सब में ब्लैक स्वॉर्ड देगा, उसका फायदा नहीं है। ब्लैक स्वॉर्ड से बनाना नहीं है मुझे कुछ भी। Whether it be their deepest sin, some मेरे पास unforgivable act, बाकी अटैक का है, अटैक का है और उसका है the फिजिकल records डैमेज का। serve both as a symbol of loyalty and the perfect. That's precisely it. Every one of us have a भाई record. पांचों बंदे लाइक कर। Me, Bashar, ये रिपीट क्यों हुई है यार चैट and यहाँ all the पे? boys who grew up with Dia ended up joining our ranks. But you, Dia, you were never asked to बफर provide a मेरा तो record, नहीं हुआ यार, were बफर you? बफर का। I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. बफरिंग कहाँ हुई है? मेरे सेकंड फोन सेकंड फोन में नहीं, फोन के में उसमें भी बफर नहीं हुआ है। Doesn't make any sense. और मैं डाटा यूज कर रहा I हूँ। didn't know about any of this, and I've never seen him get injured or beaten. Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to age by a decade overnight. Even his hair went gray. So even the Blazing Beasts were... Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me. But that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a कोई clear और तरीका है conscience? जिससे मैं मटेरियल ले सकूँ All of अपना us who knew EM स्वॉर्ड exactly बनाने का, what had आयरन happened. स्टिंग बनाने के लिए। Us can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of the Khan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters' strength. It's given us the opportunity to launch our attack. Even though अरे अभी we're मैंने ना outnumbered, एंगेटम यूज नहीं we कर रहा था, तो vowed मैंने to उसे see हटाया our हुआ था। revenge through मैं to अभी वो the यूज कर very रहा end. था, मोना यूज कर रहा था। एंगेटम तो मैंने अभी स्विच किया है इस स्टोरी क्वेस्ट के अंदर।
There अभी were तक मैं people मोना from यूज कर रहा था headquarters क्योंकि मैं who वो changed फाइट their कर रहा names था and went into hiding. Some fled to other brigades, इनाजुमा में and किसी others escaped बॉस to से the फाइट कर रहा था जिसके rainforest. पास मुझे But we won't let any of them escape our wrath. वेपराइज टीम यूज They'll करना all pay for what they've done. We've suffered plenty of losses as well. To keep going, we need an enormous amount of supplies. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible battles. Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have an opportunity to directly strike their headquarters. Paimon doesn't know what to say anymore. अभी स्विच करते हैं एक सेकंड. We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. We used to always laugh at him for it. But in the end, आज बीजीएमआई खेलना है क्या? बीजीएमआई थोड़ी देर बाद me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the low. We have no right to even imagine such an existence. But maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. But as we acted the parts and I'm sorry, Dia. I know you always found us insufferable ever since you were young. Just think of this as a madman ranting. I'll go with you. Huh? शायद खेलेंगे आज हम बीजीएमआई. I grew up with these guys. क्योंकि आज and I प्रभाव भी know नहीं they're आएगा, not bad डार्क स्टार people. पाजी भी नहीं आएंगे. It's just that some situations get so bad that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. Furthermore, I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in क्या this, हाल है so भाई? there's no एनिमे need for you एडिट to tag along. कैसे हो भाई? I can do this on my own. अरे क्या हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है ना आज. प्रभाव कोई मूवी देखा है. और वो मूवी देखने के बाद आ नहीं पाएगा. उसके पेरेंट्स आ जाएंगे. Thank you. मैं ठीक हूँ भाई. तुम We'll be a कैसे lot हो? stronger together with you. वो भी हो गया. नाइस. I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think whatever he wants. But the fact is, I owe him this much. टीम का है. ये भी तो सोचो. डार्क स्टार प्रभाव है ही नहीं. ये क्या है? तो दिया इनकी मदद करी है. वो मूवी ही देख रहा है या एनीमे पता नहीं है. हो सकता है दोनों. उसका भरोसा नहीं है. प्रभाव का भरोसा नहीं है. वो दोनों भी देख सकता है. उसका दोनों ही फेवरेट है. वेपन स्विच एंगम. ठीक है मैंने इसको कर दिया. Oh, wow! Where did that come from? ट्वेंटी 22 21. भाई इसके एचपी कम है. इसके एचपी ज़्यादा है बेनेट की. ये कैसे होता है भाई? उसका भरोसा नहीं है प्रभाव का. तुम्हें पता है प्रभाव इज लाइक भाई मेरा मन. उसका मेरा मन सिचुएशन है. उसका सिचुएशन के हिसाब से वो करते थे. वैसे आज क्या कहा था कि भाई उसकी आज उसे वीकनेस हो के थोड़ी सी मे बी.
सकता है वो ऐसे किसी सिचुएशन में हो। एक सेकेंड, या ये लास्ट मिशन है इसको, है स्टोरी क्वेस्ट का। डेंडो इंगक्टो पाएगो, तो पाएगो तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। डेंडो इंगक्टो सही है। पाएगो कहेंगे अपने पास दिया भी तो होगी। 2 पाएगो, 1 इंगक्टो, 1 डेंडो, 1 एनिमो, सही है। बस मेरे को एक हाइडो चाहिए था कि बाई चांस अगर वो आए, फायर का कोई एनिमी आए, पाएगो एनिमी कोई आए तो उसके लिए, बट हम देख लेंगे। इंगक्टो से थोड़ा टफ होता है बट हो जाएगा। They should all be holed up in here. Don't know how many people they've got left, though. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Yeah, we'll know what they're really capable of once we've landed some hits on them. Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but their name means nothing now. Yeah, they don't stand a chance with you here. I'll take the lead. I've been here once before. कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ डार्क वो भी है, वो बोर्ड भी है। आई एम हियर। ओके, Happy to bond is strong. You are not welcome here. अबे मैंने कार्गो पे टच, अच्छा ये 5 कैरेक्टर आ गए ना एक बार में, वही तभी कंफ्यूज हो गई। Into the wind. Following orders. Flicker. Buckle up. The wind knows me. Today. Come on. Let's get it on. The process of elimination. One with nature. Dissipate. Try to keep up. You're dead meat. ओ भाई दिया का ये अटैक अच्छा है। ओ भाई 9K का अटैक कर रहा है EM के बाद। वैसे 6, 7, 8 तक ही कर पाता है, 9, 6, 7 तक कर पाता है, 8 तक नहीं किया। तो 9K का अटैक करता है जब ये EM वांगी स्वॉर्ड यूज़ करते हैं इसके साथ। नाइस, इसके बनाना पड़ेगा। हाँ वेपन चेंज किया है मैंने, तभी तो 9K का अटैक कर पा रहा है, वरना 6K तक ही करता है हाईएस्ट, 6, 7K तक। फ़ायदा तो है चेंज करने का। नाइस। They went charging ahead without checking for any trap. Hey, you guys okay? It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Go and take a look around. Let's go! We can't let the boss down. Let's check if there's another way. The sooner we can make it through to help them, the better. एंड तुमको 4 पीस ग्लेडिएटर ड्रीम Let's देना। see. अगर मुझे किसी ने एक मिनट, मेरे पास कौन सा, मैं ये कौन सा वुड I think I see a way through over there. वुड It's being blocked वुड और by समथिंग ऐसा something. कुछ नाम है Let's उसका, try our luck मैंने with वो that यूज़ mechanism. किया। Okay, let's go. एक सेकेंड, एंगतम पे मैंने दिया हुआ इसको आर्टिफैक्ट से, मैं इसको मैंने ये दिया हुआ है डीप वुड दिया हुआ मैंने इसको। डीप वुड, डीप वुड, डीप वुड, डीप वुड और डीप वुड। ग्लेडिएटर ड्रीम्स मेरे पास अभी तो नहीं है, फार्म करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये मेरे पास है एक, ये है फिर डैमेज डिफेंस, वेस्ट बेकार है।
इसमें देखो क्या ये रहा। नहीं इसमें भी नहीं है, मुझे फार्म करने पड़ेगा। जो फार्म ही करना पड़ेगा मुझे। मुझे किसी ने डीप, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, उन्होंने डीप वुड सजेस्ट किया था मुझे, तो मैं वही यूज़ कर। डिस्कॉर्ड पे इसमें आ जाओ, वो इस चैट में। डिस्कॉर्ड पे आऊँगा तो मैं डाटा यूज़ करना पड़ेगा। मैं 1 सेकंड आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे आता हूँ। कितनी है फ़ोन दे, मैं डिस्कॉर्ड पे। मेरे को फार्म करने के लिए, बट वो नहीं है मेरे पास एजेंस अभी। आ जाओ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। मतलब 2 पीस डुईपुट, 2 पीस गंगेटेड इन। अच्छा तो फिर डीपवुड याओ याओ मेरे पास है, तो मैं अच्छा, पर मैंने याओ याओ बिंगड नहीं किया हुआ, ये दिक्कत है। नाहिडा नहीं है, मैं ट्रैवलर को वैसे यूज़ कर रहा था अभी तक। नहीं मेरे पास है हाइड्रो में, मेरे पास मोना है और वो है अपना बाबरा। Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. ठीक है मैं करता हूँ उसे। अभी तक मैं एंगेथम की टीम में यूज़ कर रहा था, डीप वुड सेट के साथ एंगेथम और डीप वुड सेट के साथ वो अपना ट्रैप में। One with nature. Let's light it up! Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. Here you are. अच्छा हाँ तुम कर सकते हो इसे डाउनलोड, संजय भाई डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, पहले मुझे डीप वुड फार्म करना पड़ेगा। फार्म करने के बाद मैं एंगेथम को चेंज कर दूंगा, याओ याओ के वो दे दूंगा इसके सेट को। डीप वुड का मेरे पास, ये देखो ना डीप वुड का सेट का है मेरे पास। अच्छा ठीक है, गेंडर एक सेकेंड, स्टार्टिंग से मैं फ्लावर पे जाता हूँ। गेंडर ड्रीम है मेरे पास, क्रिट अटैक कोई अच्छा नहीं है, इसमें 2 ही है, दोनों जो मैंने उसको दिया हुआ है, शेफ को जो दिया उससे स्विच कर दूँ। अभी देखो अभी एक सेकंड, गेंडर है
यही हो गया। स्टीम 5 सेकंड की दी आ गया वो देखो। और ये बिंग नहीं फ्लावर। नहीं अटैक क्रिएट डिफेंस परसेंटेज डिफेंस जो अच्छा ये अटैक क्रिएट डिफेंस सेगमेंट मास्टरी इसको मेरे को वो तो करना पड़ेगा अपग्रेड। मेरे पास वो नहीं है ना, इसे इनहेंस नहीं कर सकता मुझे। दे दिया। फेदर में नहीं है एक भी। नहीं नहीं लेवल अप करनी है उसमें। मैंने हटाया भाई, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि क्या कितने हैं। मेरे को डिफेंस ही दे जाए ना, यही तो दिक्कत है। इसमें भी डिफेंस इसमें देखो ये डिफेंस सेगमेंट मास्टर डिफेंस क्रिएट डैमेज और दूसरे पे है डिफेंस अटैक। हाइडो ये दिक्कत है ना, तभी मैंने दिया नहीं था इसमें। वो भी नहीं है। नहीं है मैंने डीपूट का फार्म ही नहीं किया अभी तक। ये रैंडम ये शायद इसका किसी और चीज़ का मैं फार्म कर रहा था तब मुझे दिया था ये। इसी में किसी और का फार्म कर रहा था। अच्छा एक ही में होगा तो मैं वही गैंगडर टीम जब फार्म करता तब मुझे डीपूट मिला था। तब इतने ही मिले थे मुझे, जहाँ तक मुझे गैंगडर टीम मिले। मैं डीपूट फार्म कर रहा था, उसके अंदर मुझे गैंगडर टीम्स दिया था, पर मैक्सिमम मुझे डीपूट दिया था उसके अंदर। मतलब मैं जो फार्म कर रहा था मुझे वही दिया था। शायद मैं लक्की था उस दिन या कुछ ऐसा होगा। ओके Everybody stand back! I'll settle this! Into the wind! Gloves off! हाँ मैं इसको गैंगडर ड्रीम्स को अपग्रेड करके ना, इसका मतलब गैंगडर ड्रीम का पूरा सेट निकाल दूँगा मैं। कंग में निकाल दूंगा, कंग एंगितम के सेट निकाल दूंगा। देना क्या है वैसे, मेन स्टैट क्या देना है मुझे इसमें? क्रिएट क्रिट डैमेज या ईएम देना है? हाँ ये तो पता है मुझे। ठीक है। ओके ठीक है। ओके तो मैं कर दूंगा। अभी तुमने वो अभी तो मैंने एनर्जी चल दिया काजू को वेपन सैक्रिफिशियल।
रेजिडेंस की कमी हो गई भाई, बाकी सारी चीजें तो हो जाएंगी। मैंने स्टार्टिंग में तो बताया था, उस टाइम मुझे पता नहीं था ना कि रेजिडेंस का इतना वो होता है। I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. मुझे 2 मंथ हुए भी But as इतना a इन्फॉर्मेशन desert नहीं था। dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run. अगर मुझे एक मिंग आता तो उसने क्या करना कि इतना ही मिंगता है। मैं वो फर्स्ट टाइम 4 या 3 मिंग आता, वो मुझे एक बार 1 मिंग आता, एक बार 2 मिंग आता, ऐसा हुआ था। कंडक्ट के साथ 2 या 1 और वैसे 1। This place behind. All that awaits me now, even now. My brothers and I still believe in नहीं, one हर बार नहीं thing. मिला ना, जब मुझे 2 बार नहीं मिला तो मैंने बंद कर The दिया। greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory? चारों से चार। अगर मैंने मैंने 2 टीम बनाई थी ना, तो दोनों के वो फार्म किए थे मैंने। मतलब मैं काजुआ निकालने वाला था ना, तो मैं काजुआ के सारे वो फार्म कर रहा था स्टार्टिंग में। They are but two, while we hold within ourselves the entirety of the स्ट्रॉन्ग बॉक्स तो लोगों पे नहीं बस वही, जैसे कि तुम्हारे पास जो आर्टिफैक्ट्स वेस्ट पड़े उनको यूज करेंगे, और मतलब उसको हम यूज करेंगे तो अपने उसमें वेस्ट आर्टिफैक्ट्स डाल के हम उस जो आर्टिफैक्ट्स के फार्म करें वो उसमें से निकाल सकते हैं। और ये परसेंटेज होती है कि तुम्हें शायद ही अच्छा देगा वो। नहीं, अभी तो ये तो नहीं पता मुझे कितने होते हैं, कौन कौन से। Clouds high, the birds call. Lightning terrified. Now I'm testing my patience. Deflect. King Desperate will not abandon any one of his followers. Now you're testing my patience. Teamwork is dreamwork. Fine. One with nature. I'll settle this. The bond is strong. डीपू डॉग Brothers! This is where we prove our faith. You all just wanna die? None of us plan to leave this place alive! Where do you think you're going? The prophet sacrifice is ready. Goodbye. But we'll meet again. The commander's finally fallen. But they're still coming at us. Okay. This place is like gladiators fair. They just keep coming and... Yes! Keep fighting! There's no need to fear, and no need to back down! This is our last stand! When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take और out that अगर high platform. इनमें से जो वेस्ट निकलेगा उससे हम स्ट्रॉन्ग बॉक्स से वो कैरेक्टर वो निकालेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाकी किसी की नहीं। Get out of my way. Come and face me, Mitchell! हाय सर से कैसे हो भाई? Broken through the front as well. हाँ ये तो है। Apologies, Lord Michon. They fight like absolute madmen. No matter how much we throw at them, they just keep coming for more. Okay. So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've done, Mitchell. You think I would give you that opportunity? I will be buried in the sand alongside all the rest of तिगागा our हो गया, याओ याओ हो गया, अपना एंगितम हो गया, अपना वो डॉक्टर हो गया, नाहिडा 5। Hey, wait! We were
too late. Okay. It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good beating as well. Hey, dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Let's go. नहीं टैग ना आ गई मेरे पास नहीं है मेरे पास सॉरी ससी क्या भाई टैग ना आ गई तो अभी कोई चांस नहीं मेरे पास आने का क्योंकि मैं 50-50 हारने वाला तो नहीं वो भी नियर बाई फ्यूचर में कोई हो सकता है हार जाए बट अभी मैं नहीं चाहता कि हारूं Who are you filthy rats? And why are you always pestering? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. How are we supposed to figure out what you're after? Have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance to talk. Hey, I said I don't know anything. I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out every day? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? Answer me. It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. ससी क्रैब भाई मेरा ना चार्ज बहुत जल्दी डिक्रीज होता है लैग तो नहीं होता बट चार्ज बहुत जल्दी डिक्रीज होता है इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ The guy who can hardly walk. Watch your mouth. That's a boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Every one of us here is perfectly aware of what he had done. Tell me, where is the old records room? It's just over there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Bashar, Takriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try. एनिमो के तो सारे कैरेक्टर्स बेस्ट होते हैं और वो बाकी वो माउंटेन या फिर कहीं से भी तुम अगर तुम्हें कहीं जाना है तो वो इजीली पड़ेगा क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है नहीं मेरा भी मन उसी को निकालने का मैं सोचा उसको निकालूंगा फिर जोंगिन के लिए सेव करूंगा क्योंकि प्रीमोस की तुम पता है F2P में प्रीमोस की बहुत दिक्कत होती है कोकमी और उसमें से चूज करने में मेरे को दिक्कत आ रहा है मोना है मेरे पास So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire, right? Yeah. I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Let's look around. Maybe we can find something that's been left behind. इसमें पता है एडवांटेज मुझे ये है कि मेरी शेफ C4 है बेनेट C1 है और काजवा और सैंग C0 हो जाएंगे Is this a king? Must be the one that Dia's father used. Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind?
But what else could survive a fire like that? वही मैं भी वही सोचूं क्योंकि चाइल्ड को ना बहुत ज़्यादा वो देना पड़ता है रिसोर्सेज तुम्हें बिल्ड करने में. Thought so. Wait, isn't that the toy sword you played with as a child? उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे उसे बहुत ज़्यादा रहने की जरूरत भी तो पड़ती है. चाइल्ड को The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. okay. Still too shy, huh? 45 सेकंड है उसका. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. फिर तो दिक्कत हो जाएगी. उसमें प्रैक्टिस की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी. Hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. Okay. What's this? Don't you remember? उसके sword को. Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. And Paimon said that she would get boatloads वही तो of कह रहा हूँ मैं. tasty उसकी snacks. sword में यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत उसे देते तो वो है बट उसकी sword जो है वो हाइडो से बनी होती है ना. उसका एक तरीके से वो अटैक है मेन. Opportunities don't come by often. So today, Paimon's gonna treat you to a special crash course on Paimon's life philosophy. Okay. Hey, come on! Paimon's not that stingy. Anyway, the point is that अभी you तो बहुत should ज़्यादा eat टाइम to your है. heart's content. You'll feel better for sure once you've gotten something in your tummy. Junior Azad will also be here shortly. She's already heard that we're back. तो मेरे हिसाब से मेरे पास ना प्रीमोज है नहीं अभी. मेरे पास सिर्फ 10 पुंग के प्रीमोज है अपने मेरे पास. तो मैं वॉन्डर पे कहूँ या कोकोमी पे. 10 पुंग 10,000 नहीं 1,600. My chest was filled with all kinds of intense emotions. पीटी It में just ये shook वन me even more than all the feelings we've shared during our वन previous वन या 2 की adventures. पीटी होगी. But when everything came to an end, those emotions also vanished. अगर मैंने वो without निकालेंगे trace. ना यूंगा. And I was left feeling more empty than ever before. It was as if I had lost the thing अरे that यूंगा was को बिंग most करना है. important. Yeah, you're right. To many एक्चुअली यूंगा ना मुझे mercenaries, Mora एक is चीज the कहते हैं कि मेरे को most बहुत important अच्छी thing लगती in है the देखने में. world. उसका जो भी है But perhaps to us, वो मैंने इस वजह से it's नहीं the निकाला most कि मेटा की worthless वजह से नहीं thing of निकाला all. मैंने उसे. उसे मैंने सिर्फ स्टोरी के वजह से निकाला था. उसकी स्टोरी देख के मतलब मेरे को इंटरेस्टेड नहीं लगा था वो कैरेक्टर. But when it इस वजह से came मैंने to avenging my father, नहीं there उसमें was सिर्फ no वाला more कोई to सीन be नहीं made था. anywhere. My सिर्फ वाला reality सीन होता तो मैं shattered यूंगा when I नहीं found निकालता. out that the father who always वो told me hero stories was पर in मेन fact a bad रीजन उसका guy. सिम्प की वजह से नहीं निकाला था Look at यूंगा me को. यूंगा now. के अंदर मैंने स्टोरी देखा Am I कि any वो different? एक टाइम पे फेवोनियस की Despite वो all एक my प्रिंसेस कह promises सकते हो बाद about में never वापस से forgiving him and चेंज हो never गई. trying to मतलब बहुत understand अजीब him, स्टोरी मुझे याद नहीं आ I रहा still we're hypocrites. All उसका of बैनर us. भी बहुत टाइम बाद आया था. Yeah, you're right. It's just a pity that we often only बैनर recognize का our रीजन true नहीं था. मैं उसकी feelings स्टोरी की वजह से नहीं था. after उसकी it's स्टोरी already देख के ना too मुझे late. एक इंटरेस्टिंग लगा था You're वो कैरेक्टर back. मुझे. Are all of you all right? डिया का इंटरेस्टिंग है पर डिया का बैनर नहीं है ना. यूंगा का बैनर था उस टाइम.
Many people from the core of 30 came over, and I मैंने just wrapped up everything with my dad. हुआ क्या मेरे पास ये आखिरी स्टोरी है स्टोरी क्वेस्ट में आखिरी दिया for their verdict. मेरा वो शायद 50 स्टोरी क्वेस्ट कर रहा था मैं तो मैंने युवा का किया और युवा मेरे को इंटरेस्टिंग था तो मैंने उस टाइम पीटी चेक नहीं किया था मैं इतने में 10 दो बार ओपन किया और मैं 50-50 था मेरा ये प्लान था मेन प्लान में था अगर मैं 50-50 युवा निकलेंगी तो ठीक वरना मैं 50-50 हारा तो मैं 50-50 सेव करूँगा ना वॉन्डर ना कोकोनी सीधे चाहिए It's all right, my बट lady. ये कि मैं 50-50 You were hurt by all of this as well. एंड हिटम पे मैं 50-50 अपना जीता था मुझे कहा नेक्स्ट 50-50 हार जाऊंगा तो वो भी जीत गया मैं But Dia, your pain must be even worse. You shouldn't need to comfort me. मेरे को मिल गया था शायद Hey, don't worry about me. If anything, this whole thing has finally shown me the difference between illusion and reality. My father probably thought that people could settle into new lives as long as they moved to a new environment. That thought has even crossed my mind a few times. It's like saying, what's wrong with adapting to new life? However, there was always something deep within my mind that refused to accept it. This impulse brought me great turmoil and even made me feel ashamed for turning my back on my father's kindness. But now that I consider it again, it all makes sense. The desert sands are a part of who I am, and I will never be able to lead a peaceful existence. I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my life. As an example, I'm now thinking about taking on some small odd jobs. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become a character in his play. Even if the ending of the story may be childish. Isn't that neat, though? Oh, you'll be a whole new kind of mercenary, one that's not out for Mora. Why don't we go for a change of scenery once we finish eating? What about stopping by the Grand Bazaar again? Right. You said you wanted to get a rug for your family. We'll come along too. जिनको तो स्टैंडर्ड बैनर से निकले थे ना वैसे भी अभी बैनर में उसके 3-4 बैनर तक तो उसके चांसेस ही नहीं आने के I can't thank you enough for... मैं रेजर को मेन डीपीएस बनाना चाहता था अरे वो क्योंकि मैं जिसका वीडियो देखता हूँ ना वो रेजर को बहुत अच्छा यूज़ करता है मेरे को नाम याद नहीं है यूट्यूब पे और उसके जो वो है ना आर्टिफैक्ट्स वो भी वो कहता है कि ज़्यादा हार्ड नहीं है बिंग फार्म करना रेजर की तो मैंने सोचा कि वही बनाएंगे तो रेजर ही थोड़ा इजी ही पड़ेगा हाँ मुझे याद नहीं उस टाइम मैंने देखा था अभी तो याद नहीं जब मैं नहीं निकला तो मैं उसको फिर अब याद नहीं कि कौन सा था शायद एनर्जी या कुछ था मुझे याद नहीं आया ढंग से अभी हाँ वही हैवी सोड वाला जैसे यूं है गुजारे तो है मेरे पास This brick here is quite something. मुझे 2-3 टीम बना दो मैं तुम्हें स्क्रीन पे शो करूंगा मेरे को बताना कौन सी टीम बेस्ट है Fabric is also of high quality. और उनकी बिंग बता देना मैं बना दूंगा Here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? You can still talk? Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all in a fight?
I just came here to give you something. Once I woke भाई up, तुम्हें पता है कि I भाई heard तुमने you गन had से gone क्यों किया था off सेम my रीजन town, मेरा भी है hoping उस to टाइम look और into कुछ the माइंड में matter. आता नहीं है But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves into the authorities. Even I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave this box to me, and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated. मैंने अपने सबसे ज़्यादा फेदरिंग यूज़ किया था कालुआ पे उसका जब वो उसका आर्टिफैक्ट्स पे No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. So this box contains... Well, back in the day. But let's see, what's this? It's just a bunch of junk. It was against the act. That probably means this was really important to him. And here... Did he get those for? Yeah, but here's the thing, though. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which, from the looks of it, probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. One, no, two empty liquor bottles. Huh? There's something in the bottle. Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dia. It's a letter from me? It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. मैं अपनी प्राइमरी 2 टीम बनाता हूँ उस पे आर्टिफैक्ट्स फार्म करना चाहता हूँ मैं सब पे वेस्ट नहीं करना चाहता तब भी मैं कहूँ मुझे 2 टीम बना के दो ताकि मेरे को क्योंकि ना ऐसे रैंडमली आर्टिफैक्ट्स फार्म करना उन ज़्यादा टीम पे वो वेस्ट है 2 टीम पे फार्म करते हैं उसके बाद जब उनमें अगर नीड पड़ेगी किसी और को ऐड करने की तो तब किसी और कैरेक्टर के यहाँ पे स्विच कर देंगे आर्टिफैक्ट्स तो सेम ही होते हैं जैसे मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें तुम स्विच कर सकते हो अपना जब भी मुझे कोई और आर्टिफैक्ट्स यूज करूंगा तो मैं इसका आर्टिफैक्ट उसको दे दूंगा उतने टाइम के लिए एबीस के टाइम पे He was never up to any good. हैज़ो वही ना जो एनिमो है Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you. एक मिनट में ये स्टोरी क्वेस्ट स्टार्ट जाए ना मैं वो सेटअप में देता हूँ. Wait, what? Surely, I was really felt, but as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day, and you were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I should just... at this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia. ये इस स्टोरी क्वेस्ट में स्टार्टिंग में इसके फादर को एज अ विलन दिखाया है और एंड में उसको सबसे अच्छा पर्सन दिखा दिया है टेबैट का. स्टोरी अच्छी है. That's the end of the letter.
In the end, he was still thinking of me as a little, I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change. Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then हाँ डाक्टर बाजी I want प्रभाव to जा try चुका my है hand at अब उसकी finding the तरह person who abandoned एंगीतम me. की तरह ना I just have one wish. To tell एंगीतम them का a भी तो हट जाता story है बस तो जब that there once existed a childish and foolish jerk with a heart of अल्टीमेट की gold. बात नहीं कर रहा मैं उसका जो And फर्स्ट that चार्ज only होता under है his care was I able to. If you end up finding any leads, can you share them with स्किन us? की उसकी We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. हाँ वही तीनों I मेरे जो होते हैं वो appreciate हट जाते हैं I अगर wasn't हम चेंज expecting you करते to be so enthusiastic. I'll help too. Thank you. All of you. Thank you so much. My अच्छा life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. नहीं तब तो है Oh, ow! Where did that come from? अब मैं 55 पे से बहुत दिनों तक रखना पड़ेगा मुझे अपने कैरेक्टर को 55 है ताकि इसे अच्छे से बिल्ड कर सकूँ बाय डाक्स्टर बाजी ये 55 क्यों उस पर वो आएगा ना जैसे उस पर आता है 45 पे स्टॉपेज नहीं है इस पर ये तो यूजनेस हो गया फिर तो अगर मैं पता है उसमें ना मैं 60 के कैरेक्टर से रैंडमली ऐसे ही किया था मैंने मेरे पास फूड नहीं था सिर्फ बैनेट था तो मैंने बैनेट से एचपी वो करते गए थे मुझे उनका मैं हार जाऊंगा मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था बट वो मैं जीत गया मेरे पास अभी भी स्ट्रीम है मैं 60 के या 70 के कैरेक्टर से मैं कर रहा था कोई फाइट और मैं जीत गया था 60 + 70 के मैं काजो 70 का था बैनेट 60 का था कुकी 60 की थी और मुझे लगा था ना मैं उससे इंगक्टो क्यूब से हार जाऊंगा और मैं इंगक्टो क्यूब से फाइट करते टाइम में माइंड सेट गया कि इससे हारना है और डायरेक्ट में जीत के बाहर आ गया ये हुआ था उसमें 50 की बात करूँ मैं 45 की बात नहीं करूँ 45 के टाइम तो मैंने खुद ही किया था क्योंकि मुझे काजुअक ने पुंग करना था और मेरे पास प्रीमोज नहीं थे 50 के टाइम ये हुआ कि मैंने सोचा कि करते हैं हो जाएगा बट हुआ नहीं वो जीत गया एक सेकेंड इसमें क्रायो क्वीन हटा दो इसी को बताओ क्रायो क्वीन को इसका क्या नाम रखना है बताओ टीम का यूंगा का टीम नहीं है वो तो मैंने ऐसे करा अच्छा हम डेड 10 बताओ टीम का नाम ठीक है बताओ बताओ एंगेतम हाइपर में एंगेतम Yo, yo. How long will this require exactly? Yo, yo. I'll take good care of everyone.
बाबरा या फिर मोना? Save. What they do this time? Next. ठीक है। और दूसरा? एक तो कीबोर्ड, इसमें हैजू, I'm on the case. बेनेट, मोना, मेरे पास वो भी है या जांगिन थोमा के साथ बाद मेरे पास ये भी है, यानफे भी है अपने मेरे पास, तो उसे ब्रिंग नहीं किया मैंने अभी। It is as the stars foretold. थोमा से फिर शेंग पे देगा वो। मैंने एक टीम बनाया था, ये बनाया था मैंने, डेंडो, ट्रैवलर, एंहितम, मोना और कुकी, ये हाइपर बूम बनाया था मैंने। मैं ट्रैवलर का सिर्फ मेन, उसका मेन अटैक किंग है, मैं उसे यूज़ करता था मेन हाँ, ताकि वो उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा एंहितम को। मैं एबीज में यूज़ कर रहा था इसको, मैं नहीं। ये तो है, मोना ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसमें अगर काजुआ, बारबरा, बेनेट, एक सेकेंड, ओके, चैंग तो अभी है नहीं इसमें। I won't hold you back much. मैं समझ गया संडे के दिन बंदे कहाँ गए हैं। वैसे तो हर दिन आ जाते हैं, संडे के दिन बंदे आ ही नहीं गए स्ट्रीम पे, पता नहीं कहाँ बिजी है। कोई मूवी आ गई क्या आज अच्छी? ओह शिट, तभी तो आ नहीं है ये सब। मैं सोचो मेरा था संडे को ज़्यादा बन जाएंगे, बट संडे को कब आ गए? नहीं तो अभी तक 100 व्यूज़ से ज़्यादा हो चुके थे, और अभी तक 68 हुआ है, 68, हाँ 68 हुआ अभी तक। Time to go. हैजो मैंने बिंग नहीं किया, हैजो का याद दिया हुआ है, ये तो सामने सैक्रिफिशियल। हाँ वो अभी कभी कभी ई वापिस आ जाता है, वो वॉच सा उसके सर पे बनता है, वापिस आ जाता है वो।
मोना 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 ये स्विच इस पे ईएम मुका दिया हुआ मैंने उसको। कौन सा दे दूँ कि डैमेज और अटैक? कितनी है? थ्री स्टार वेपन तो यूज़ कर दिए थे मैंने, मतलब वो इनको अपग्रेड कर देना। कौन सा चाहिए इस पे मोना पे? इसको कौन सा एंगमेंट देना है, मतलब वो क्या देना है इसको? किट 8 किट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज। नहीं उसे तो वैसे भी नहीं देना किट 8, उसका फ़ायदा ही क्या है? वो तो सिर्फ हाइड अप्लाई करने में यूज़ आती है और बफ में। Time to go. Hard work is all there is to the craft. तो ये तो वेस्ट है। कौन सा है? अटैक नहीं, ये फोर्स का है। ये है ना, ये बना सकते हो। मेरे पास ये मेरे को वो करना पड़ेगा, फार्म करना पड़ेगा। ये भी एनर्जी रिचार्ज है। मेरे को ये अरे नहीं, वो मैं हटा देता पहले ही, तो मुझ पे आएंगे इतने। अब देखो ये भी एनर्जी रिचार्ज है और ये है। आदित्य कहाँ है? भाई साइड हो आइकॉन। भाई कितनी बार ये बताओगे मुझे? हाइड आइकॉन है बार बार, हाइड आइकॉन तो आ रही है भाई, बार बार हाइड आइकॉन कहाँ से? एक टाइम कोकोमी को कहते मैं मान जाता, जब तक आइकॉन नहीं आएगी। अच्छा, इनमें से बनाना कौन सा है? ये फार्म करना पड़ेगा। वो हाँ कुछ दिन मैंने फार्म किया हुआ एक बार, एक वेपन के लिए मेरे को याद है थोड़ी बहुत जगह। बाकी मार्क कर देगा अभी तो मैप में।
अरे मैं माइकिंग की लिमिट ज़्यादा हो चुकी है ना, मैं हो चुका है मेरा ज़्यादा माइकिंग की लिमिट नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत सही माइक किया हुआ। अरे तुम ये देखो ना, अभी दिखा दो तुम्हें। पहले तो मैंने काजू के फ्लावर्स मार्क किए थे जो कि मैंने हटा दिए मैक्सिमम, थोड़े बहुत बचे हैं। और उसके बाद मैंने वो मॉन्स्टर में मार्क किया वाइट आयरन, क्योंकि वाइट आयरन सभी में यूज़ होता है। और उसके बाद वो सिंचो के हो, ये मेरे को नाम याद है इस कैरेक्टर का, क्या नाम है इसका, चोंगयून किंग है जो पत्थर की जरूरत पड़ती है। ये कोप स्नैपिंग इसके भी मैंने मार्क किया हुआ है। हुयूंगा है तो बता दो इसने मुझे बहुत सारी लोकेशन, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है ये सारी लोकेशन मैक्सिमम जगह पे। हो जाएगा हमारे वैसे इतने में तो 50 करने ना, हो जाएगा ये, मैं बोल रहा हूँ भाई, सच सही है भाई। नहीं गोगो नहीं है, निंगवान भी नहीं है। मैं ये निकालूंगा ना, एक सेकंड में उसको स्विच करना पड़ेगा कि वो एक Ready for reconnaissance. अगर यूंगा बिंग्ड नहीं है टीम से फायदा क्या है, अगर एनिमीज आ गए तो दिक्कत आएगी। Shut up. अरे हो गया भाई क्या कर सकते हैं, एक कभी कभी कुछ होता है। तुम पता जिस टाइम ना तुम्हारे माइंड में ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा तुम्हें आता है कि भाई कैरेक्टर अच्छा है। मैं मानना ये देखो गेम ना बात कहेंगे कि नहीं है मैं हाँ वो तो मैं बहुत पहले पूछा। Time to go. नहीं मैं पता 410 के से ऊपर भी जा सकता हूँ, बट ये है कि मैं वो 3 स्टार नहीं हुआ ना 410 चैम्बर 2, तो मैंने उसने उसे पोस्ट कर दिया। मैं जितना भी करूँ 3 स्टार, अदरवाइज मैं क्विट कर दूँ 3 स्टार। अरे यार यूंगा कौन मांगा भाई, रुक जा भाई 1 मिनट। पेड़ की वही तो कर रहा है, दिक्कत हो रहा है। वही तो हो गया काम हो गया। अरे भाई ये तो छोड़ी नहीं, इतनी रेंज से बाहर नहीं हो गया मैं इसके। कितनी रेंज इसकी कोई और ना पड़ेगा, मैं 2 बार मर चुकी है। इसका भी HP आर्टिफैक्ट नहीं है इस पे अच्छे। छोड़ो वो नहीं होते हमारे पास, चोंगयून भी है। उसको करेंगे बाद में। वेपन नहीं है उसका, थोड़ा है वेपन, वो है पोस्ट जो मिलता है वहाँ से हमें। अरे ये क्या नाम है इसका, शिट में वो नाम याद नहीं आ रहा है। ड्रैगन स्पाइन में जो वेपन मिलता है, यूंगा का वेपन है वो R2 है भाई। यूंगा का वेपन R2 कैसे करूँगा मैं।
तुमने वो नहीं किया होगा ना, क्वेस्ट नहीं किया होगा। ड्रैगन स्पाइन का क्वेस्ट है ये, देता तो है वेपन ये। हाँ 4 स्टार वेपन है और वो है तुम्हारा उसका है, ऐसा तो हो गया शिट। 4 स्टार वेपन है प्लस तुम्हारा वो भी है इसमें एडवांटेज, मतलब तुम, मेरे पास ये भी है और मेरे पास ड्रैगन स्पाइन का स्पेयर भी है। वेपन भी तो मिलता है तुम जब जाते हो, एक बार तो तुम्हें बनाए मिल जाते हैं, एक बार मैंने बनाया था। Into the wind. अगर तुम्हें मिला होगा ये तो तुम, अगर तुमने क्वेस्ट किया तो तुम्हें पक्का मिला होगा क्योंकि ये देता ही देता है। अगर ये वो है जो वो एक दरवाजा से नहीं घूमता है, टैबनेट, एंशिएंट टैबनेट ओपन करने के यूज करने के बाद सारे डोर से ओपन होता है एंशिएंट टैबनेट। तुम्हें 8 एंशिएंट टैबनेट ढूंढने पड़ते हैं उसके अंदर से। ये ड्रैगन स्पाइन में टैब टूथ से तो वो बनता है ना स्पेयर, एंशिएंट टैबनेट्स जो होते हैं होता है वही तो मुझे मिला। टैबनेट्स करने के बाद तुम्हें ये गेट ओपन होता है, उसके अंदर ये बनाया होता है। गेट में बताता हूँ, ड्रैगन स्पाइन, मॉन्स्टर, कहाँ है इस जगह पे जो गेट होता है। इससे जब हम अंदर जाते हैं, अगर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पीछे तो नहीं है, हाँ अभी तुमने देखनी है। इससे जब हम अंदर जाते हैं हम, तो एक आते नहीं सर्कुलर गेट है। 7 आवर गेमर भाई कैसे हो, मैं शो करता हूँ एक सेकेंड। ये जगह नहीं है, ये नहीं है। I love it when it snows. The world falls completely silent. वेपन अच्छा है वैसे ये। And I can sleep undisturbed. मुझे ढंग से याद भी नहीं आ रहा है कहाँ पे है। बैनर से नहीं मंगा भाई, मेरे पास 2 है, 2 है, वो मैंने खुद बनाया एक बार, वो एक बार यूज़ किया हुआ है, इतना मुझे याद है। क्या ये अच्छा, यू लर्न समथिंग। मुझे इंगॉन मस्क का इंगॉन सुनाई पड़ा था अभी तक। हाँ यहाँ है रास्ता। ये मैंने वेपन चोंगयून की वजह से निकाला था, फिर मुझे पता चला कि ये यूंगा पे भी। एक सेकंड मेरा ये आते हो दिखा इस जगह से, यहाँ पे वो भी थी। अगर यहाँ पे वो होता है आग वांगा दिख नहीं रहा, इस जगह पे रहता है, सेंटर में वेपन रहता है, यहाँ पे 4 आग वांगे होते हैं, उनको फायर करने के बाद तुम्हें ये वेपन मिलता है, फायर अप्लाई करने पे उन पे मिलता है यहाँ पे वेपन। मुझे तो यही से मिला था, मैंने यहीं पे जाके फार्म किया था वेपन भी मिला था और रेसिपी भी। तो मैंने उसे रेसिपी फर्स्ट टाइम, मतलब रेसिपी तुम्हें ट्री से मिल जाता है, वो जो रेड ट्री होता है ना, उससे तुम्हें रेसिपी मिल जाता है और वेपन तुम्हें मिलता है वहाँ पे जाके। तो मैंने रेसिपी से बना लिया था पहले, बाद में मैंने वेपन फार्म किया था। तुम दोनों
ये देखो ना, ये स्टोन टॉम्ड स्टार सिल्वर, ये नहीं है तुम्हारे पास? ये मिलता है, वहाँ जाना, वहाँ से मिल जाएगा। वो 8 टैबलेट सर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद वो गेट ओपन होता है। आखिर उसमें 8 टैबलेट में से एक टैबलेट किसी और गेट के अंदर बंद होता है, जिसके अंदर तुम्हें, अरे वो कस्टम नहीं किया, जिसके अंदर तुम्हें वो मिलता है प्राइस्ड क्वेस्ट, प्राइस्ड बॉक्स, प्रिंसेस बॉक्स और किंग बॉक्स, ऐसा कुछ होता है जिससे गेट ओपन होता है एक। नहीं वो यूज़ कर चुका ना, मैं अब दिखा नहीं सकता। वहाँ पे होता है प्राइस्ड बॉक्स, प्रिंसेस बॉक्स और किंग बॉक्स, ऐसे 3 बॉक्स से एक गेट ओपन होता है, उसके अंदर एक टैबलेट होता है, वही क्वेस्ट है ये। उसका फिर वो उनका भी एक क्वेस्ट है, तुम्हें एनिमीज मारना पड़ता है। तुम्हारे पास कैच है ना? ऐसे इसका भी एक वो है, मतलब तुम्हें कैच में फिश पकड़ना था, इसमें तुम्हें थोड़ा एनिमीज हो ये सब करना पड़ता है बस। इसमें भी सेम वो है, जैसे कि तुम्हें स्पेयर के ऊपर एक आइस सिकन गिरता है ना, इसके अंदर भी सेम गिरता है ऐसा। मेरे पास टूथ पड़े हुए, मुझे एक और बना सकता हूँ मैं स्पेयर, R2 कर सकता हूँ अपने स्पेयर को, ड्रैगन स्पाइन के पास मेरे पास टूथ पड़े हुए सारे। तुम्हारा तो R5 हो गया होगा स्पेयर ड्रैगन स्पाइन का। मेरे पास ओजारिया है, मैं ओजारिया पे यूज़ करता हूँ। मैं ओजारिया को मैंने दिया था, तो ओजारिया में 80 था वो, तो मैं चोरियन के बाद मैंने ओजारिया बंद कर दिया यूज़ करना। ये यहाँ पे ये इसने ब्लू स्टोन भी मार्क किया है क्या? मैं ब्लू स्टोन तो चाहिए नहीं मुझे। हो जाएगा वही, एक सेकंड मेरे को वापस इनाजुमा। मैं बिन बात में इतनी दूर क्यों आ गया? यहाँ पे भी तो पत्थर है। मैं तुम्हारे पास वो प्रिंसेस बॉक्स, तो ये बॉक्स मिल जाएगा तुम अरे तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारे 5 स्टार वेपन पड़े हैं, तुम्हें इसकी इतनी अर्जेंसी क्या है? पर ये कनेक्शन के लिए पड़ेगा। वो भी मेन गेट नहीं है, वो भी मेन गेट नहीं है। वहाँ पे तुम्हें एक टैबलेट मिलेगा, वो टैबलेट ओपन करने के बाद तुम्हें एक और जगह जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मेन गेट मिलेगा तुम्हें टोटल 8 टैबलेट ओपन करने पड़ेंगे, मतलब उनको देखना है। उन टैबलेट्स को करने के बाद तुम्हें आखिरी टैबलेट वहाँ पे है, वो जो नहीं होता जहाँ पे हाईएस्ट पीक होता है, जो उसके पास एक टैबलेट होता है। तुमने शायद वो कर भी चुका होगा, क्योंकि तुम हाईएस्ट पीक पे तो गए होगे पहले ही, तो वहाँ पे टैबलेट होगा। वो जो स्टोन सा होता है जिसमें कुछ लिखा होता है, डूम स्टोन जैसा जो होता है। टैबलेट नाम है उसका, एंशिएंट टैबलेट। ड्रैगन, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे शायद आ जाए, मैंने तो ऐसे रैंडमली सर्च किए थे, एंशिएंट टैबलेट्स ड्रैगन स्पाइन आ जाता है इससे। अगर मैं ये स्टोन ना पहले ही फार्म कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे अभी मिलेंगे नहीं। मैं फार्म कर चुका मैक्सिमम स्टोन ये। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये फार्म किया था उसके लिए। इनाजुमा की सॉर्ड नहीं होती है, उसके लिए।
ये स्टोन इधर भी है नीचे, जितना मुझे याद है इधर भी होते हैं। हाँ ये यहाँ पे भी है। A touch of frost. एक यहाँ पे, 2 3 One with my blade. टैबलेट कितने तुम्हारे पास? वो कनेक्ट नहीं होता तुम्हारे पास, वो सिर्फ उसे रीड करके तुम्हें काउंट में ऐड हो जाता है बस। वहाँ पे एक वो बना रहता है, डिज़ाइन सा बना रहता है, मतलब वो टैबलेट का शेप बना रहता है, वहाँ पे वो लाइट अप हो जाता है बस। बैकपैक में नहीं आएगा टैबलेट तुम्हारे पास। कर चुके होगे तुम, 2-3 तो कर ही चुके होगे कम से कम 8 महीने। Time to go. Time to go. फिर इसका नहीं है भी। Fourth, my blade. ओके 33 हो गए मेरे पास, 17 मोर। देखता हूँ 2-3 इधर होते हैं। मेरे को जगह याद है, पता है रिसोर्सेज की, मैक्सिमम रिसोर्सेज की। इतना फार्म किया हुआ है सारे रिसोर्सेज। मैं उसने मार्क करवाया, जो मैंने अभी हमने मार्क करवाया ना, उससे मैंने वो मार्क पे गया भी नहीं। 3 इसके पीछे होता है सैंड में, बस वहाँ का रिस्पॉन हो गया क्योंकि मैंने यहाँ वो फार्म किया था अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले। ये कितने दिनों में वो रिसोर्सेज वापस आ जाते हैं वापस? सबसे एंड में। Time to go. सबसे आखिरी में होंगे वो। नहीं, यहाँ का स्पॉट नहीं हुआ अभी तक। पोकेमॉन यूनाइट में खेलता हूँ, बट ये की टीम नहीं है मेरे पास, फ़ायदा नहीं है उसके मेरे पास टीम नहीं है ना, फ़ायदा क्या है, खेल नहीं पता मेरे। वो में ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तुम्हारे डिस्कॉर्ड में जो टीम है उसमें मैं एक बार गया था, बट सब अपना ही बिजी थे, तो मैं सोचा डिस्टर्ब क्या करना, फिर मैं वापस आ गया। वो इस चैट में मैंने, क्योंकि वो जानते नहीं ना मुझे, तो वो एक रैंडम पर्सन को ऐड कैसे करेंगे किसी अपने डीएनए पर्सन को हटा के, इसलिए मैंने फिर सोचा कि One with my blade.
मतलब अपने के क्लैन को रिप्रेजेंट करता हुआ नाम। इम्प्रेस हो गया ना वो देख के। ओ भाई अभी थोड़ी और क्या है कि प्रैक्टिस कर आया हूँ मैं। ऐसा ही है भाई। Heart be pure. नहीं Evil be erased. Mind be मुझे purged. डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड World करूँगा तो भी be- आऊँगा मैं। I always forget that last part. क्या तुम्हें डिलीट कर दिया ना? तो अभी मैंने अभी क्या ये कौन सा इवेंट चल रहा था? ईवी वाला इवेंट के बाद मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं पूरा खत्म हो गया अभी तो रैंक। मेरे को फे पुश करना पड़ेगा अपनी रैंक को, वैसे थोड़ा ना हो जाऊंगा मैं। तुम्हारा रैंक क्या है? मेरे को रैंक पुश करना पड़ेगा। वेटरन पे तो मैं आ जाऊंगा, उतना भी डाउन नहीं होगा जितना मुझे याद है। Let me try. तो किस टाइम खेलते हो तुम सब? A touch of frost. परमिशन है, मैं पूछो किस टाइम खेलते हो ये मुझे। Spirit blade. Attack. Swift and merciful. Clouds high. The birds call. Teamwork is dreamwork! Lightning terrified! But how? One with nature. तो मैं यहाँ का तो हो गया। दूसरे दिन स्टोन्स रेड दे दो। उसमें क्या है? रेड थोड़ा ब्राइट दिखता है, अच्छा भी दिखेगा। नहीं मैं इस वजह से पूछा किस टाइम खेलते हो ताकि उस टाइम के हिसाब से मैं आ जाऊँगा ना, तो मैं स्ट्रीम के देख तो स्ट्रीम पे भी होता है। पोकेमॉन यूनाइट की बात हुई है 7 से गेमर भाई, कैसे हो? वेलकम बैक। ओह शिट भाई, सुबह 10 के बाद के 2 बजे तक। Follow the wind. बहुत लंबी चौड़ी जर्नी होगी ये तो। Weather is not bad today. Oh, crud. I jinxed it. Now it's bound to rain. Adventure time! One with my blade. That!
essence of the Ame Noma art is to have the patience. सेवन्थ गेम में तुम न्यू गए हो? ओके भाई, मैं भी न्यू हूँ भाई। तुम्हारा क्लब भी होगा फिर तो उसमें, यूनाइट में। नेम चेंज करने के लिए नेम कार्ड की नीड होती है इसमें भी? शिट। तुम्हारे पास नेम कार्ड है? Let's get down to business. It's my lucky day. Swift and merciful. सुनेगा। Feel my blade. ये तो है। Force my blade. एक तो टीम का नेम अब होता है। तुम्हारे में अभी तुम्हारा गेंशिन के क्या चंगा है? तुम्हारे प्लेयर्स क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स है ना कुछ जो गेंशिन की स्ट्रीम करते हैं? क्यों? ये तो है। हाँ, अभी तो बहुत सारे पार्ट्स बाकी है। जैसे कि अभी तो कुछ ही हिस्से आए हमारे पास, अभी तो
Time to go. Time to go. हाँ नहीं, मैंने मैप नहीं खोते हुए देखा अभी तक। मेरे पास लिंक भेज देना होगा तो वो देखना ही होगा। वो डिस्ट्रॉयड वाला मैप की वैसे नॉर्मल मैप। हाँ वो जो बेटा वर्जन का। जब अपने जो वो खुद के स्टाफ को ये बनाते हैं मैप वो ना। अरे वो बीटा वर्जन जो होता है मेन, जो स्टार्टिंग में ट्रेनर जो आता है, जो खुद के पर्सन ट्राई करते हैं उसको सिर्फ। बना दिया मैंने वो वेपन उसके लिए मोना। ओके ये तो है। अभी अपना मेन आया भी कहा है, बहुत सारे पार्ट्स बाकी अभी। एक सेकेंड, अभी हमने कितने एक्सप्लोर किया होगा। स्टोरी क्वेस्ट, अरे वो कहाँ से दिखता है? जैसे हमें इन्फो मिलती है, जैसे हम टिबेट ये सब शो होते हैं, जैसे ये है ना। अभी न्यू हार्बर तक वही ना, जूमा हुआ, टिबेट हुआ है, सुमेरू। अभी तो बहुत सारे बाकी होंगे। कहाँ है? मैंने देखा था कहीं से, मुझे याद नहीं आया। ये नहीं, ये नहीं है, ये मुझे याद नहीं आया। अरे वहाँ पे जा से तुम्हें फ्यूचर में जो और वो आने वाले स्टोरी उनकी लिस्ट मिलती है तुम्हें। हाँ मैंने देखा था उसमें, मेरे को याद नहीं आया कहाँ देखा था, बट मैंने देखा था कहीं। ये तो वो है इन सबकी, ये तो स्टोरी क्वेस्ट है। जैसे ये ना अभी दिखाया मॉन्स्टर, फिर न्यू हार्बर, फिर ट्रैवलर का स्टोरी दिखाता, फिर इनाजुमा, फिर ये जेड चैम्बर सुमेरू, ऐसे उसके अंदर वो दिखा रहा था कार्निया, और बहुत सारे ऑप्शन थे। मेरे को याद नहीं आया कहाँ था, शायद इन्होंने जब मैं स्टार्टिंग में था तब मैं देखा उसमें कार्निया और वो बहुत सारे ऑप्शन और थे, 2-3। हाँ मेरे को याद नहीं आया कहाँ था वो, कोई था कोई ऐसा जहाँ पे हम देख पाए थे उसे। मॉन्स्टर का तो हो गया, इनाजुमा हो गया, ये जेड चैम्बर हो गया, इसके साथ ये ट्रैवलर है, फाउंटेन लैंड, ये सब तो हो चुका है। ये तो अभी क्या है ऐसे में, ये जो वो दिखा रहा है ना जो हमने किया है उसमें ना पेंडिंग दिखा रहा था कि जो आना बंद है, वो लॉक था, इसके ऊपर लॉक का साइन था। जैसे हमें स्टोरी क्वेस्ट पे लॉक का साइन होता है ना, वैसे लॉक का साइन था उस पर। मैंने पता नहीं कहीं देखा, स्पॉइलर नाम है। अरे मैंने देखा हुआ है तभी तो। अरे मैं कार्निया और एक और मतलब 2-3 ऑप्शन थे उसके अंदर जिन पे लॉक का साइन था। मैंने नहीं, मेरे साथ प्रभव नाम का एक वो है प्लेयर, उसने भी देखा था, हम साथ में ही बैठे थे, उसी ने मुझे बताया था, तब मैंने देखा था कि भाई अभी बताए और कौन कौन सी क्वेस्ट आनी है। मैंने कौन कौन सी, तो उसने कहा ये चीज़ें आनी है। तो मैंने कहा कहाँ से अच्छा मैप में एक मैंने हटा दिया था जब तुम कह थे। मैप में नहीं दिखेगा, मैप में तो अपना मैप ओपन होता है ना। ये मुझे याद नहीं है, कहीं देखा था, मुझे इतना याद नहीं है कहाँ है, बट था कि स्पेशल इवेंट में तो नहीं है। नहीं ये तो वो है।
कम्युनिटी एडवेंचर बुक में भी नहीं होगा, एडवेंचर बुक में Benio's coal to होगा। quiet the spirit and लैंडिंग गाइड, अचीव my vital energies. ये ट्यूटोरियल है बॉसेस। ये तो वो है जिनसे मैंने वो किया है, जो हमें वो देता है जियोग्राफी, इसमें सकते हैं। ये कौन है? ये स्टाफ स्नैक्स नहीं, ये अभी लॉक है ना, जैसे इसमें ये लॉक सिस्टम है ना वैसे उसमें भी था, पर ये नहीं है अभी। मॉन्स्टर इनाजुमस में वो मैंने ये लॉक है, ये तो अभी अनडिस्कवर, ये तो अभी आया ही नहीं है गेम में। जैसे ये है ना, देखा तुम्हें नेक के अंडरग्राउंड, ये जो हमारा नेक है मॉन्स्टर के साइड में, इसके अंदर अंडरग्राउंड एक प्लेस है, ये अंडरग्राउंड प्लेस की वो है। ऐसे ही न्यू हार्बर में ये वाली प्लेस अंडर नहीं, मैं बताऊँ जैसे ये है ना, ऐसे अंडरग्राउंड प्लेस का था वहाँ पे मॉन्स्टर के पास, वो मॉन्स्टर के नेक के नीचे कोई अंडरग्राउंड प्लेस है, वैसा कुछ दिख रहा था वो, क्योंकि वो मॉन्स्टर के अंदर थी, कोई केव जैसी बड़ी सी जगह। ठीक है। मॉन्स्टर में नेक के पास कौन सी पिक्चर है जो मैंने क्यों ली है? वो तो हो ही चुका है, यहाँ का भी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे भी कर चुका। ये वो कोई आज की वॉचिंग बहुत ज़्यादा कमाई है, मैं अभी तक 100 क्रॉस हो चुकी थी मुझे। हाँ भाई मेरे पास पता है इतनी इसमें ना जेंशिन में फार्मिंग के सिवा कुछ बचा नहीं मेरे पास। वैसे स्टोरी को तो खत्म ही सारी। A touch of frost. अच्छा ये कहाँ से मिल जाएगा मेरे को? आयरन स्टिंग बनाने का मटेरियल कहाँ से मिलेगा? What's your battle plan? कोई जगह पता है तुम्हें? वो जो शॉर्ट सी मिलती है उस और कोई नहीं है कोई सोर्स उसका? शॉप से बाय भी नहीं कर सकता अब मैं, क्योंकि वहाँ से बाय कर चुका हूँ मैं। आरपी भाई F2P बना रखा है इस अकाउंट को मैंने, नहीं चाहता मैं इसमें कोई भी पेमेंट करूँ। आरपी शायद खरीदूंगा बट अभी नहीं। मुझे यूंगा बिल्ड कर, मैं इसके आर्टिफैक्ट्स फार्म करता, आर्टिफैक्ट्स नहीं देते इसके, बहुत घटिया आर्टिफैक्ट्स दिया है। क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज। एक ही इस पे फिजिकल डैमेज बूस्ट तो दीजिए, बट ये बाकी चीजें बेकार है इसकी। अरे इसका सिंप की वजह से नहीं था, इसकी मैं स्टोरी क्वेस्ट किया था यूंगा की, ये जिसमें अपने, और इसकी सबसे बड़ी बात है ना, इन्होंने क्या किया था, स्टोरी क्वेस्ट भी इसी की चल रही थी, और जो इवेंट आया था उसमें भी यही थी। जो इसके ब्रदर वाली स्टोरी थी उसके अंदर भी इसकी सैड पार्ट थे थोड़े बहुत, स्टोरी क्वेस्ट में भी इसके सैड पार्ट था। वरना मेरे को सिंप करने के लिए मेरे पास जीन थी भाई, मैं जीन सबसे अच्छी, एक मिनट पीटी कितनी मेरी जीन की स्टैंडर्ड बने पे। अरे भाई जीन में भाई तुमने उसका वो नहीं देखा क्या, उसका जब चार्ज अटैक मारते हो तो देखा नहीं तुमने? चार्ज अटैक के टाइम 63 की बेटी है, और इसमें हिस्ट्री कितनी है? इसमें 1 की पीटी है और स्टैंडर्ड बैनर में 63 की पीटी है। अच्छा तुम्हारी उस पर 1 वो है, मैं स्टैंडर्ड बैनर पे
I condemn you. इनका पीटी सिस्टम पता है 170 160 में जाके तुम्हें कंफर्म वो मिलता है जो तुम्हें चाहिए। लिमिटेड बैनर या की बात करूँ मैं, 90 तो सिर्फ नाम का है, अगर तुम 50-50 जीत गए तो मिलेगा वो। पता नहीं क्या 2006 में 2 50-50 जीत गया। मेरे को तो यकीन नहीं होता कि मैं यूंगा का 50-50 जीतूंगा। मैं 2 बार जीता हूँ। मैं अपनी फर्स्ट 50-50 हार गया था, लाइफ की फर्स्ट 50-50 वो हार गया। सेकंड उसके बाद तो कंफर्म ही होता है, फिर उसके बाद 2 लगातार जीत गया और स्टैंडर्ड में मेरे को जीत मिल गई। अच्छा, स्टैंडर्ड बैनर में जो 5 स्टार्स है उसमें सबसे बेस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी या कचिंग? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं तुमने मेरी स्ट्रीम में देखो, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं यूंगा का 50-50 हाउ तो टेक्नोलॉजी लूँ जाए। वो तो मुझे स्टार्टिंग में मिल चुकी थी ना, उसके बाद की बात होती है। मतलब कहते हैं तो सारी अच्छे डीपीएस है अगर तुम विंड करोगे तो, या तो फिर तुमने अभी बताया उसका चार्ज अटैक बीच में कट आउट हो जाता है अगर तुमने उसे चेंज किया थोड़ा सा भी। बाकी उसको ऐसा चाहिए कि तुम्हें कंफर्म उसी को यूज़ करना, वो भी बहुत केयरफुली। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. मतलब तुम्हें शील्ड चाहिए कि अच्छा खासा उसके लिए। अच्छा Let's get down to business. अच्छा, तुम यूज किस में करते हो गेम, पीसी या उसमें फोन में? अपना ये जेंशिन इम्पैक्ट। अच्छा, Everybody stand back! Out of my way! As one with wind and cloud! Into the wind! Here you are. भाई मैं सोच रहा था कि जेंशिन के मैक्सिमम प्लेयर पीसी वाले होते हैं अगर जो वो स्ट्रीम और बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। मैंने बहुत कम जो फोन में स्ट्रीम में। हाँ अरे मैं फ़ोन बहुत अच्छा है, मैं इसको ना हाईएस्ट ग्राफिक पे भी बॉस मारता हूँ, मैं अब लैग नहीं होता गेम। मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है अपने फ़ोन की। वर्थ इट है इसे बाय करने। मैं जिसे कहता हूँ ना, वर्थ तो नहीं करूँगा इसका बाय करने का मुझे। ये बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है बट इस वजह से मैं हाईएस्ट ग्राफिक यूज़ नहीं करता, वरना अगर मैं किसी बॉस पे हाईएस्ट ग्राफिक पे खेल रहा हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि ये आराम से हो जाता है इससे। नहीं डायरेक्ट स्ट्रीम फ़ोन से, सब कुछ फ़ोन से। यार मैं लैपटॉप तो खराब हो गया उसकी डिस्प्ले टूट गई बाय मिस्टेक। मतलब टूटने की मतलब क्रैक नहीं है वो, बस थोड़ा सा वो हो गया, दिक्कत हो गया।
हो गया पता। मैं आज का टारगेट हिट नहीं हुआ। मेरा हर दिन का टारगेट होता है कि 120 या 115 व्यूज आ जाए पर आज 120 115 नहीं आए। आखिरी बॉस मारते हैं एक्टो क्यूब, उसके बाद जाते हैं वो वहाँ पे स्ट्रीम एंड करेंगे। संडे तो है तभी तो कंग अच्छा है ये। मैंने देखा है ना वो सागे आज मूवी में देखने में बिजी है सागे के सागे। मैंने क्योंकि कुछ एक दो आए हैं जो कह के भी बता के भी गए कि हाँ मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज मैं मूवी देख रहा हूँ। वही पीटर बगाइंडर वाली जो मूवी है जो मतलब हीरो जो है उसका। अभी तो वो हाईएस्ट ग्राफिक पे है ये गेम अभी मैंने किया हुआ है, जो भी हाईएस्ट कर सकते। अब पीटर बगाइंडर की जो हीरो नहीं है जो उसी की मूवी जो आ गई आज। अरे यार मैंने कैरेक्टर चेंज नहीं किया, नहीं था मेरे पास शिट, मुझे वो चाहिए था। अरे मैंने यूज़ नहीं किया ना अंगितम इसके अगेंस्ट, क्योंकि अंगितम का चार्ज अटैक नहीं है ना मेरे पास। मेरे को वो चाहिए था। मैं याद आता ना इस पर मैं वो यूज़ करता हूँ अपनी शेफ, उसका एबिलिटी यूज़ बनी छोड़ के ना फिर तुम आराम से कोई भी बूस्ट बफ करो। अरे मेरे को उसकी याद नहीं रहता नाम उसका उसकी आदत पड़ी है शेफ के लिए। इसमें पता है दिक्कत ये है बस कि इसका ना चार्ज अटैक बहुत देर से आएगा अंगितम का, इसमें मैं अंगितम यूज़ नहीं करता इसमें। अब देखो ये आ गया, अब चार्ज अटैक अब जाएगा क्या। कुकी है अपने पास, ये करेंगे। कुकी का एडवांटेज तो है, कुकी का सबसे बेस्ट है ना कि इसको फिंड पे मतलब कुकी और उसका क्या नाम है हमारी जो वो है कोकमी उसका ये एडवांटेज है कि तुम्हें वो नहीं करना पड़ता इनमें ज़्यादा। जैसे बाबरा में भी स्विच कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर उनमें स्विच नहीं कर सकते तुम। अरे यार ये अटैक आ गया इसका। अब तो मैं गेम अभी बिल्कुल लैग नहीं होगी इसमें, तुम्हें देखी होगी स्ट्रीम पे दिखा होगा गेम लैग नहीं हुई है। जो तुम्हें थोड़ा बहुत वो दिखा है ना पोज, वो मेरे से जॉयस्टिक कंट्रोल नहीं हो पाई है। अरे मैं एचपी कितना बच गया। अरे यार उसका वो हो गया। चार्ज हो गया ये। मैं उसको वो नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर बातों में चल गया। हाँ इससे बैनेट से मारना पड़ेगा वरना फिर वही दिक्कत आएगी। अगर मेरे से कोई भी सजेस्ट पूछेगा ना कौन सा फ़ोन नहीं चाहिए, मैं तो उसको यही सजेस्ट करता हूँ भाई। पर अब बेकार हो गया पता है वन जब से इसने उसमें गया है, ओप्पो के अंदर गया जब से। स्टार्टिंग में नहीं था, अभी गया है। तुमने देखा ही होगा स्टार्टिंग में तो इसने अभी 1 साल 1.5 साल पहले ओप्पो के अंदर गया है। मेरा तो फ़ोन को बहुत टाइम हो गया। अब है ओप्पो के अंदर ये जो पर्सन है ना ये ओप्पो के साथ काम किया करता था, मतलब उसके अंदर एम्प्लॉय था तो इसने ओप्पो वो कर दिया था। मेरे पास एजेंट्स का है एजेंट्स का है मेरे पास। फन के गेम आ गया था, मैं बस ट्राई कर रहा था अंगितम की डैमेज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी ईएम के बाद, पर बढ़ी है 7K से। मतलब जो मेरा हाईएस्ट 7.5 की जाता था वो 8 और 9 जा गया ईएम से।
और मेरे पास 800 नहीं ना, मेरे को क्राउन पे उसने वो नहीं दिया अभी तक एनर्जी रिचार्ज। सब पे दे दिया, बस क्राउन पे नहीं दिया, पता नहीं क्यों। $675 है अभी तो। 800 तो था जब शॉर्ट थी उसके पास। मुझे शॉर्ट एक और बनाना है। हाउ मच EM ऑन योर एंगितम? एंगितम पे कितना EM? मैंने देखा नहीं। 199। कितना चाहिए हमें EM? इसको EM तो मैं EM दे सकता क्या एंगितम को? 1 मिनट, मेरे पास आर्टिफैक्ट्स में तो होंगे ही। स्विच कितना चाहिए हमें? क्रिएट एनर्जी रिचार्ज डिफेंस, ये वेस्ट है। फुंगावा कौन सा देना था इसको? ये इसमें EM का है, ये HP अटैक क्रिएट डैमेज, ये वेस्ट है। मेरे को ना इसका सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आया था, ये। अगर इसमें डिफेंस की जगह EM दे देता ना तो ये बहुत अच्छा होता है। इसका ये नीफ फैदर, सॉरी, अटैक। मैं इसको अभी EM दे सकता हूँ, मेरे पास एक पड़ा हुआ है सेकंड। ओ सेकंड नहीं, वॉच है मेरे पास EM की। कहाँ है? इसमें है सैंड में EM है, मैं दे दूँ क्या इसको? EM मांगा है मेरे पास, पर वो उसका है नोबनेस का। अभी कहेंगे टेम्पररी। क्रिट डैमेज तो है, पर अब अभी जो मैंने दिया उसमें डिफेंस अटैक एनर्जी रिचार्ज है और HP है। उसका है अटैक है। ओके EM। ओह मेरे पास मेटेरियल भी तो नहीं अपग्रेड करने के लिए, ये भी तो दिक्कत है। EM सैंड दो। बताओ तो मैं वॉइस नहीं जाएगी वैसे इस टाइम पे। अभी यूज करने के कर देते ना, बाद में उसे स्विच कर देंगे। ये तो इनके ना, तुम्हें जो चाहिए होता है वो सामान देते भी तो नहीं है। 314 अब सही है, तब भी एनर्जी रिचार्ज कम हो गया। बट अगर उस पर किट रेट मांगा तो अभी हमने हटा दिया, याद नहीं है उसमें किट रेट? हाँ किट रेट कम होगा। किट रेट कम है इसका, एक सेकंड। उसमें किट रेट था क्या जो मैं भी यूज़ कर रहा था? आर्टिफैक्ट इसमें नहीं, कौन सा यूज़ किया था हमने? मेरे पास एक किट रेट मांगा, ये मैंने दिया था इसको स्टार्टिंग में, पर मैंने हटा दिया था। ये किट रेट ये इसमें था, फिर मैंने से किट डैमेज दे दिया। ये यूंगा को जो मैंने दिया हुआ है, फिर उसका क्रिट डैमेज हट जाएगा पूरा। क्रिट डैमेज भी तो कम है इसका, ये देखो ना, क्रिट डैमेज भी तो कम है इसका। 158 है। कोबनेट अटैक EM इंगक्टो हाइड्रो HP। इसमें क्रिट डैमेज वाला नहीं है ना मेरे पास अभी। अच्छा एक सेकंड। छोटा सा जो फिंगर है, ये
ये बगड़ स्टेन है सबसे ऊपर, उसका है डेंड्रोजेट। ट्रैवलर पे है ये एचपी है वो। याओ 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 है मेरे पास। ये मैंने ओ को देखते कि शो पे डेंडो डैमेज कोई अच्छा सा उसके साथ हो तो। मेरे पास मेटेरियल ना है, ये भी तो दिक्कत है। एक बोनस एबिलिटी देखते क्या है होता है। क्रिट डैमेज दे दिया इसमें, नाइस। क्रिट डैमेज है बट इसमें सही है, ठीक है। अभी इसको दे दूँ क्या, इसको अंगितम को दे दूँ क्या, ये स्विच कर दूँ? अब इसका हो गया टोटल 15165 एनर्जी का डेंडो डैमेज बूस्ट हो गया मेरा 53.5%। Wait. Huh? No. You have farm अमाउंट डेपर हंटर भाई, थैंक यू। मियाज हाय भाई, कैसे हो तुम मियाज भाई? भाई रोज सही भाई, रोग से आगोजी कौन सा है? आगोजी क्या है? आगोजी कौन सा, मतलब फ़ोन की बात करोगे कि किसी और चीज़ की बात करोगे? नहीं मैं मतलब पूछा फ़ोन की बात करो ना तुम यहाँ पे, या फिर कोई शॉर्टकट नाम यूज़ करो किसी और मतलब किस आर्टिफैक्ट्स का। क्योंकि मैंने एक ऐसे बंदे देखे हुए जो हर चीज़ में शॉर्टकट यूज़ करते हैं। फाइन को F9 लिखते भाई, फाइन लिखने में कितना टाइम लगा तुम्हें? ओह शिट, मैं जम गया। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मियाज भाई। बड़े अजीब है वो, मैं चार्ज खत्म हो गया जल्दी, मैंने अभी नोटिस किया है। कहाँ गया ग्राफिक? तुमको क्रिएट आर्टिफैक्ट्स क्रिएट दे दो इसे, ठीक है ये हो गया। अब देखते क्या हो गया इसका। 38,115 क्रिट डैमेज 115 है, वो क्रिट 13 है, वो है 38 है। क्रिट 8 AM कंफर्म, सबसे ऊपर यही आ रहा है। क्रिट 8 है इसमें, क्रिट 8 हीलिंग बोनस है, नहीं ये नहीं है। क्रिट डैमेज आ गया, फिर क्रिट डैमेज तो इसमें भी है। इसमें एंगमेटर मास्टरी और क्रिट डैमेज है बट जो मैं यूज़ करता इससे पहले। काजबो को मैंने वो दिया हुआ है, क्रिट डैमेज दिया हुआ है। एंगमेंट मास्टरी 82 है उसके ऊपर, क्रिट रेट 6.2 है, डिफेंस अटैक। You won't get 64 crit rate ratio, 66 by 180, level 90 hybrid. Okay. भाई टॉप 10 है तम परसेंटेज होता ही है। और मेरे पास एजेंस है नहीं कि मैं फार्म कर सकूँ उसे। मैं तुम्हारा नाम क्या रखा हुआ है इसमें तुमने? वही ना चंदन वाली आईडी पे, ये दूसरे पे?
तुम्हारा है 5290 5292 7. You can add me. Can you add me? Yes. Why not? 5292 है भाई तुम्हारा. शायद डीप वुड और वो है तुम्हारा, तुमने जो बताया 2 पीस डीप वुड नहीं 3 पीस वो है ग्लैडिएटर और 1 क्विट 8 यम सैंड पे तुम्हारा गोबनेट पे है डेंड्रो, सर्कनेट पे क्रिकेट है, सैंड का है, ओ शिट ये नहीं है, ये एगमेंट मास्टरी. मियाज भाई वो बताओ UID. Which is exactly why I took the MIYAZ. भाई नाम से नहीं होता भाई सर्च. मियाज भाई नाम से थोड़ा सर्च होता है. No. Whatever. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence.
A process of elimination. The wind knows me. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Time to go.
Will Miss Sataria bring me some new pictures? Don't use mic भाई, सही भाई, don't use mic मतलब एक्चुअली मैं माइक बंद किया, मैंने देखा नहीं था शेड्यूल। मैं थ्रोट में थोड़ा सा पेन हुआ इसलिए मैंने माइक बंद किया, मुझे कफ हो मुझे थोड़ा सा भाई माइक कर दिया सबके साथ। आई एम न्यू इन जेंशन इम्पैक्ट। AR मेरा 54 है। 54 की 53 है, एक सेकंड देखा मेरा। AR मेरा 55 बना है। हमें क्या सर्च करना है यहाँ पे मैप में? गो टू लोकेशन इंडिकेटेड बाय स्टोन। शायद ये मिशन को में ना हो। एक सेकेंड, ये जगह जाना है मुझे, या मैं सिर्फ बात नहीं पढ़ पाया, मुझे जाना कहाँ है मेरे को ये याद नहीं आया। ये तो है, फ़ोन के साथ थोड़ा टफ तो है। फिशिंग स्पॉट की वाक्य मैंने यहाँ तुम में से किसी ने क्वेश्चन किया कि मुझे जाना कहाँ है, किसी को बताए भाई कहाँ जाना है? ये तो है भाई, बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत है। डोंट वरी, टेक अ गुड रेस्ट, गो गेट रेस्ट। अरे हो जाएगा मेरा, शायद एक दो दिन में हो, एक दिन का और टाइम चाहिए। पर मैं अपनी मैं नोज बंदे में कंसिस्टेंसी अपनी खराब नहीं करना चाहता है, क्या करें। जाना कहाँ है? टू लोकेशन इंडिकेटेड बाय स्टोन स्टे। अरे कहाँ पे इंडिकेट है भाई लोकेशन? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. भाई करना पड़ता है। गो करना तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ ये अलग बात है कि उसका तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलता उतना जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो, बट होता तो है। मुझे कहाँ जाना है? Surely enough to convince anyone to become a wanderer. ओ इसे चैट नहीं देखा मैंने यार, शिट सॉरी। इसे बताइए क्या? Go to location indicated by stone snake stone snake। भाई स्टोन स्नेक से तो अब शायद ये वो होगा सिंगल प्लेयर में करना पड़ेगा। यू डोंट यू फील टायर्ड? करंट थोड़ा बहुत होता है तो भाई, इट्स लाइक अ जॉब। तुमको टायर्ड महसूस तो होगा, बट तुम जॉब पे तुम अगर फोकस नहीं करोगे फिर तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी। इन माई केस मेरा वॉच टाइम डिडक्ट हो जाता है। एक्चुअली मैं माइनक्राफ्ट पे गया था स्टार्टिंग में, मैंने 1.5 साल तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया ड्यू टू एग्ज़ाम्स। इस रीज़न से मेरा जो वॉच टाइम है वो 3,400 से वो 600 का वॉच टाइम हो चाहिए था मोनेटाइजेशन के लिए, तो 3,400 से 1,800 हो गया था।
तो वापस वही अपना मोनेटाइजेशन के वॉच टाइम की कर रहे। अभी हम 2000 वापस हुआ हमारा, देखते कितने कब तक हो जाएगा 4000 वापस। और ये मुझे जगह नहीं दिखा रहा, ये बुजुर्ग आदमी बहुत झूठ कहते हैं भाई। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. भाई जगह सुमेरु में है कि कहीं और पे है? ये क्वेस्ट करना ही नहीं है मुझे भाई। ओह शिट, ये कहाँ से आया ऑप्शन? ये ऑप्शन कहाँ से आया मुझे? ये कहाँ से दिखे मुझे ये ऑप्शन है शायद से। There are leaves around. अच्छा मैं कंप्लीट हो चुकी है बहुत सारी Just the tune to जगह। ये बचा एक, if you wish to hear it. और लोकेशन भी ये बची हुई है। ओके ये आया कहाँ से था ऑप्शन, ये पता है किसी को? ये ऑप्शन आया कहाँ से है? तो ये ऑप्शन है, ये कौन सी जगह है? ये लोकेशन गो। अच्छा यहाँ Wherever in this world I roam, I carry a sadness. I can't feel your pain. I hope you feel your worst time for the monetization. All the very best. थैंक यू सो मच भाई। यही तो है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई। बट एग्ज़ाम्स भी इम्पोर्टेंट थे, क्या कर सकते। ओह शिट भाई, ये क्या हुआ? मैंने क्या कुछ बैकग्राउंड में ऑन करके छोड़ा हुआ? Time to go. इधर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे। ओके ये हुआ बंद। आजा आजा। ओह शिट, मैं काजुआ की एचपी कम हो गई। मैंने विंडो का ऑप्शन नहीं था इसके अंदर। काजुआ की एचपी कम हो गई। मैं शिट में कैरेक्टर कैंसिल हो गया। मैं नोटिस नहीं किया मैंने। पहले तो ना काजुआ डिटेल वेपन स्विच, क्योंकि अभी आगे तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो स्विच कर देते हैं वेपन। और सेकंड कौन से पर ख्याल रखो अपना, आराम भी क्या करो। और कौन से मोबाइल चल रहा है आपका? कौन सा मेन कैरेक्टर? भाई मैं मेन कैरेक्टर है काजुआ एकदम। And I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. बस फूड भी जो है। Nice. Time to go. करना पड़ता है यार कुछ। ये बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। कहाँ है ये? वाह भाई, ये एनिमीज होंगे। Stand with me. One with nature. क्या करना था मैं? टच द सेल। ओके तुम एक्टिवेट कर सकते हो क्या?
और इतना स्टॉप है। ओके ब्रो, मैं चला रहा हूँ, सोने का टाइम हो गया। बाय बाय भाई, गुड नाइट। Who says there aren't benefits to a life of wandering? अब कहाँ जाना है? ओह शिट भाई, एक बात समझ नहीं, ये को में क्यों गायब होगा इतना? अभी तक तो नहीं हुआ था। Into the wind. Lightning terrified! My The wind knows me. Every little bit counts. इस साइड जाने का हमें। थैंक यू साइंग भाई। ओके, तुम ऐसे तो कुछ दोगे नहीं, मुझे पता था। Brings a smile to my face. Stabilize. Whirling snow! Brings a smile to my face. क्या है? This is order. Clouds high. The birds come. Into the wind. Fateful offering. Okay. भाई मंकी प्लेयर में गेम अटक गई है। ओके, मुझे करना पड़ेगा क्या पाए वो यूज? ओके, मुझे करना पड़ेगा। भाई वो गाइडन बागी डोमेन कहाँ है? गाइडन को रोकना था, हैंग करोगे? भाई मैंने गाइडन को अपने वंग में नहीं भगाया, तुम्हारे वंग की बात करो यार। मुझे गाइडन को मारना मेरे लिए इम्पॉसिबल है भाई। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मेरे को नहीं आता भाई यार। मैंने इतना अच्छा बिंग नहीं किया कि मैं गाइडन मार दूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हाँ मैं मार दूँगा गाइडन को, बट रियलिटी ये है कि मैं नहीं मार पाऊँगा। मैंने इतना अच्छा बिल्ड नहीं किया भाई।
इसमें कुछ है तो नहीं? चेस्ट वेस्ट नहीं। भाई करना पड़ेगा धीरे धीरे, गो करेंगे अपने कैरेक्टर्स को, थोड़ा बूस्ट अप करेंगे, बिल्ड अप करेंगे, तब तक उसके बाद हो पाएगा जो भी अच्छा है। ये स्टोर ये कम है। तुम फाइट करोगे ऊपर आ जाओ। Time to go. भाई लाइक करो यार। Time to go. A faithful offering. ओके तो हम 10 मिनट 15 मिनट और स्ट्रीम करवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सोने। आई मीन सोने तो नहीं, बेसिकली 10 मिनट और की स्ट्रीम है। आज की स्ट्रीम लंबी है, आज 4.5 घंटे होती है, आज 5 घंटे हो जाएगी। बताया होता ना अभी जिसका मैं अकाउंट रिव्यू कर रहा था, चंदन, वो होता तो पक्का हो जाता गाइडन का, उसका बिल्डअप अच्छा है। ओह शिट, एकदम व्यू में क्या आते हैं। हमें यही करना था यहाँ पे आके, जैसे रिलीज करना है। करना है क्या गाइडन तुम्हें भी? अरे यार ये फैन बंद नहीं है अभी, उठ जा उस पर मत जाइए अभी, फैन बंद। चल जल्दी चंग भाई, फैन ऑन हो जाएगा वापस। ऐड कर सकते हो तुम, आईडी बता दो, चंदन भाई आ जाएंगे। ओह शिट सिचुएशन में आई थोड़ी सी। फैन ऑन हो जा, ये ऑन नहीं होता क्या फैन? क्या है अपना वो? यहाँ आएगा ना ये। अबे यार एक जगह से ना दूसरी जगह पे अटक रहे थे। इसको मार के आते नीचे से। 5 मिनट की स्ट्रीम बचे बस, इनको मारना पड़ेगा। Let's light it up. The wind knows me. Fallen moonrise, adorn my night. This is order. Who says there aren't benefits to a life of wandering? अभी मत कहियो तू नीचे ही जाना, तुझको भी भाई, इसको भी नीचे ही जाना था। हम फिर बाद में ऊपर आए, इसको नीचे साथ में चलना था। मुझे कहा जो ऊपर गेट है वहाँ जाना है। अपनी आईडी बता दो, चंदन भाई को आ जाएंगे वो तुम्हारे साथ मदद करने। Time to go.
ओह शिट भाई, मैं जुखाम। वाई भाई जुखाम क्यों? इतने क्या दुश्मन है तुम्हारी मेरे से? ऐसे कितने, ऐसे 2 होंगे, 2 की 4 होंगे भाई। को में गायब होता है थोड़ा सा जब मैं पिन आ जाए। आईडी बताओ। 4 है भाई, ये तो बहुत हार्ड होगा ढूंढना एक एक को। एक इस साइड है, 1 सेकंड। ये कोई अच्छा वो मुझे महंगे में कोई यहाँ का वो भी पोर्टल भी अनलॉक करने दे। आईडी बता दो, वो आ जाएंगे। ओके भाई देखो, मैं स्ट्रीम एंड करूँगा आज। स्ट्रीम बहुत ज़्यादा क्यों गई आज? 5 घंटे हो गए। वैसे मैं 4 घंटे ही होते। हिंदी बताओ। Boats are made for transferring The scenery is commodities. wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. आई थिंक भाई जा चुके हैं जिनको करना था। क्या है भाई? आई कैन हैंग यू डिफीटेड नॉट मी। भाई मुझे नहीं मारना, किसी और कोई और पर्सन है भाई मैं जिसको मारना था, बट वो पर्सन अभी है नहीं। Time to go. ये तो अनलॉक नहीं होगा। और कहाँ पे होंगे ये? वो नीचे तो पूरा हुआ है इन्फिनिटी। जाते जाओ मरते जाओ। सब नीचे जा सकते हैं। अच्छा वो है। अरे यार शिट। फैन बंद हो जा भाई। Shine down. अरे ये सब भी बहुत घूम के जाते हैं। अरे यार ये तो वही है क्या फिर से? तुझे अंदर जाना है भाई, इतनी सी जगह पे जाने के लिए तो 10 बार ज्वाइन कर दे। अरे चंदन भाई यार तो वो जा चुके हैं, उनके आईडी नहीं होगा शायद, वो अभी नहीं करना चाहते। सामने रिसोर्सेज छोड़ दिए मैंने शायद थोड़े से। मेरे को बैनेट हो जाएगा क्या 80 अब? बैनेट ये है। Benny's adventure team. ओह शिट, मैंने वहाँ पे छोड़ा बुक। मैंने बुक छोड़ दिया शिट। एक सेकंड, वही मैं सोचा कि मेरे को एक पर्पल बुक मिलनी चाहिए थी। कहाँ है? इधर छूट गया। नहीं यहाँ पे भी नहीं है। गेम बहुत फ्रीज हो गई है भाई, ये क्या दिक्कत है भाई? गेम फ्रीज हो गई भाई, पता नहीं क्यों। अरे कैरेक्टर चेंज किया ना तभी तो। यार जेंशिन में ना ये थोड़ा सा करना चाहिए इनको कि कैरेक्टर चेंज करते टाइम गेम लटके भाई। उनको अभी नहीं आना, वो शायद जा चुके हैं।
साइड जाना मुझे मैं कि तुम्हारा टीममेट जब कैरेक्टर चेंज करता है ना तुम्हारा वो ना हो गेम लड़ के Time to go. उस टाइम गेम में टकने का क्या मीनिंग होता है ऊपर नहीं जाना हमें ऊपर ही जाना है क्या हमें ओके तो मैं वो है पर यहाँ पे पर क्या वो सिंगी है यहाँ पे Oh shit. इधर फैन तो नहीं है ना यहाँ पे वरना ये भी फैन में जाके डिसअपियर हो फिर मुझे वापस करना पड़ेगा एक सेकेंड फैन ऑन है Time to go. ये तुम सबको आएंगे पीटी पे कोई सामान देता है क्या मुझे तो नहीं देता ये गेम कोई आएंगे टाइम में तुम्हें कोई अच्छा सामान दे दे मुझे 5 स्टार नहीं दिया आज तक इसमें आएंगे पे काजुआ दिया है बस 35 पे या 45 पे उसके सिवा कोई भी नहीं दिया दो बचे बस ये यहाँ का डोर कैसे ना होगा यहाँ कोई डोर है क्या कुछ अनवॉक हुआ यहाँ पे एक इधर का बच्चा बट ये अनलॉक कैसे हुआ पता नहीं इस पे तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं क्या ये सींगी का क्या करना है मेरे को समझ नहीं आया ये कहीं निकल जाएगी क्या मैं क्या है ये Ooh, damn. Nice.
अब ऊपर कैसे जाऊँ, बट ये बता दो। आ गए यार, जो कोई बात नहीं, हम ऊपर तो आ गए टेस्ट के पास। ओके बस यही दिया गया इसने, एक आर्टिफैक्ट्स हो ये। हाँ भाई, मैं भी जाऊँ खाना खाने। बाय भाई, थैंक यू सो मच। बाकी हम कल करेंगे ये। एक सेकंड, हम अंडरग्राउंड करते हैं। नहीं नहीं शिट, वो मैप छोटा कर रहा है, उसमें अंडरग्राउंड कहाँ से आ गया। ओ भाई, मैं भी जाऊँ खाना खाने। बाय 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 गाइस। एक सेकंड, मैं क्रिएट ओपनिंग करके दूँगा। क्रिएट क्यों, विश करके दूँगा। मेरे पास 2 विश आ गई, स्टैंडर्ड बने के देखते क्या निकलते। ट्री अपग्रेड करने में शायद 2 विश से देगा ये देगा कि इनाजुमा का देगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। शायद इनाजुमा का देगा या ओ भाई कितना टाइम लगेगा भाई। मैं 230 की पिन क्यों आ गई, मैं समझ नहीं आया। 170 की तो आती है। एशिया में ये पिन की दिक्कत बहुत रहती है, कभी कभी अच्छी पिन आएगी, कभी कभी तो बेकार कर देती है। मुझे सुमेरो के म्यूजिक पे कॉपीराइट दे देते भाई, मैंने पता नहीं क्या ही लॉजिक को गाते ये सब कभी कभी। ओ भाई, मेरी गेम अटक गई है, शायद चार्ज कम हो गया ना इस वजह से। बैटरी या 17 हो गई है। 20 के नीचे डाउन जाती है गेम, थोड़ा सा वो हो जाता है अजीब, मतलब परफॉर्मेंस कम हो जाती है फ़ोन की, मैगी सिचुएशन हो जाती है। अभी तक तो सही चल रहा था, हाईएस्ट ग्राफिक पे सही चल रहा था, अभी पता नहीं क्या हुआ। ओके 164 एंड 60। ओह शिट भाई, मैंने स्किप कर दिया। शिट शिट शिट। पर ये स्वॉर्ड किस काम की मुझे पता नहीं, तुम में से किसको पता है किसकी है हैवी स्वॉर्ड? अभी पता चल जाएगा। 5 स्टार वेपन, और मैंने उसे स्किप किया है, आई डोंट नो व्हाई। इस पे देखते हैं, हैवी स्वॉर्ड ये यूज़ करते हैं ना, वेपन स्विच। एनर्जी रिचार्ज है यार, शिट भाई। एनर्जी रिचार्ज कौन यूज़ करता है, किस पे एनर्जी रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी हमें? एनर्जी रिचार्ज इसको दे सकते क्या? डैम भाई, वेस्ट हो गया। मुझे कैरेक्टर चाहिए था आगे। 65 की पीटी में निकला है भाई चंदन भाई। ये किसको दूँ चंदन, ये किसको दूँ मैं एनर्जी रिचार्ज? एक सेकंड पे ना, मैं यूंगा को उसका वेपन वापस कर दूँ। शिट का यूंगा, सेंस नहीं करना तुझे, वेपन वापस देना है तेरा। स्विच फिजिकल डैमेज तो यूंगा को चाहिए, जो होंगे उनको भी एनर्जी रिचार्ज दे देते हैं, तब तक केंगे। इनहेंस एनर्जी रिचार्ज की जरूरत तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं पड़ती यार। ये क्या वेपन दिया है मेरे को पता है, मेरा स्टार्टिंग से प्लानिंग था इसमें टेक्नागी का कि कोई अच्छा कैरेक्टर दे दो यार। ये वैसे जीरो पीटी हो गई अब, इतनी मेहनत से 65 की पीटी किया था मैंने स्टैंडर्ड बैनर पे। शिट भाई, तो अच्छा मुझे 2 विश मिल गया, इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ, वरना मैं वेस्ट करूँगा किसी और चीज़ में। वो मैं शेफ अरे नहीं मैं इसको खरीदूँगा। C5 करना है मुझे ये, मेरे पास फिशर नहीं है। ओह एक सेकेंड, ये कौन सी है? क्रिट डैमेज की स्वॉर्ड
बेस्ट रहेगा ऑप्शन मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो। और ये कौन, ये क्रिट डैमेज स्वॉर्ड, ये उस पे काम आ सकती है। क्रिट डैमेज की स्वॉर्ड हूँ या फिर वो चंदन भाई, डैमेज की स्वॉर्ड या फिर फिशंग, या ये जब नेक्स्ट वो आएगा। ओके भाई, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं भाई। घटिया स्वॉर्ड दी, बट इनको देना था ऐसा कैरेक्टर देते हैं यार, कोई 5 स्टार थोड़ा काम आ जाता। बट कोई बात नहीं, जीन के बाद एक वेपन भी दे दिया उन्होंने। कुछ नहीं होंगे विश तो विश बाय करेंगे तो, वरना मैं वेस्ट करूँगा ये तो। ओके सेव रखते हैं विश को, नेक्स्ट वो आएगा ना जब। अभी तो ये खरीद नहीं सकते। कितना देता है वैसे ये? हम इसे खरीद सकते हैं 4 खरीद सकते हैं ना, तो मेरे पास में गया आगे जाके काम आएगा ये। There are leaves around. वॉन्डर के ऊपर। And I know just the tune to accompany them. ओके भाई, If you बाय wish बाय, to hear it. गुड नाइट, कल मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन।